Welcome, students. Good evening to all of you. So, today is the exam preparation class of semester 2, paper 1, the philosophical foundations of education. Right, guys? So, as you know, that, you know, in philosophical foundations of education, so we have the syllabus of, we have basically, different isms. Okay. For example, if we see the syllabus, I'm going to open the PDF file also, which I have already shared with you. Okay. So in our syllabus, there is when we talk about, basically there are two things. One is a Western school of philosophy and one is a Indian school of philosophy. Okay. So under the Western school of a philosophy, we talk about different isms. Okay. As you see in the syllabus. So again, this is the exam preparation class of paper 1, philosophy of education. Just see the syllabus. This is your syllabus, right? So before this, I just want to tell you, you should have copy and pen. You can note down the important things. Okay. So this is a very important class, right? And important things, you have to note it, right? So just see the syllabus. The paper 1 is philosophy of education, right? When you see about the course content, right, unit 3, see just the unit 3. Under the unit 3, Western school of philosophy. So under the Western school of a philosophy, idealism, realism, naturalism, pragmatism and existentialism. Okay, this you have already done in the B.Ed also, but don't worry, in this class I will narrate, I will discuss everything, but swiftly. Okay, थोड़ा तेजी के साथ मैं करूंगा, because whole of the syllabus I have to discuss, but make sure that every point will be clear to all of you. Okay, and after my class, you just have to go through 2-3 hours. Okay, everything would be cleared. So this is a Western school of philosophy, and when we talk about the Indian school of philosophy, then guys, under the Indian school of a philosophy, we have the Vedant and Sankhya. Vedanta and Sankhya, जो मर्जी प्रोनाउंस कर लीजिए, वेदांत एंड सांख्या. ओके, और उसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ ए फिलोसफी, वी हैव द बुद्धिज्म एंड इस्लामिक. ओके, एंड अलोंग विद दैट वी हैव द फोर थिंकर्स. राइट, कौन कौन से थिंकर्स हैं? विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर एंड गांधी. देखो, सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब बिफोर गोइंग टू दी, just to learn the content, the most important part is to learn the syllabus in your mind. Okay, you should have in your mind, भाई मेरे सेमेस्टर 3 के अंदर आई हैव द आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म. और यूनिट 2 के अंदर आई हैव द इंडियन स्कूल ऑफ ए फिलोसफी, जिसमें है वेदांत है, सांख्या है, बुद्धिज्म है, इस्लामिक है. ओके, और लास्ट में जो चौथा सेक्शन है मेरा, फोर्थ सेक्शन है. फोर्थ सेक्शंस के अंदर मेरे पास है 4 थिंकर्स हैं. कौन कौन से? गांधी, टैगोर, अरबिंदो एंड विवेकानंद. और यूनिट 1 में उसके अंदर है नॉलेज, और ऑलवेज नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस आता होता है. टेल मी अबाउट द नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज. ये देखिए, ये सिलेबस है. पेपर 1 आपका कुछ भी नहीं है, बड़ा ही इजी है. राइट, यूनिट 1 के अंदर देखिए एजुकेशनल फिलोसफी है, देन एक नॉलेज है. राइट, इंडियन स्कूल्स के अंदर वेदांत और संख्या है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में इजम्स हैं, और लास्ट में 4 थिंकर्स हैं, और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ए फिलोसफी है. ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ए फिलोसफी है. लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म. बेसिकली लॉजिकल एम्पिरिसिज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ही बात है. ये करंट 19th सेंचुरी फिलोसफी है. तो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. You should have copy and pen. So please note, guys, important point. Okay, because I have shared all the notes with you. I have shared last year paper with you. I have shared even the solved paper with you. अब आपको लर्न करना है, और इनफैक्ट मैं आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और 100% वही आएंगे. ओके, सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, थोड़ा सिलेबस में हम और डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो होता क्या है, ये आपका सिलेबस है. क्वेश्चंस, व्हाट द एग्जामिनर डू, व्हाट द एग्जामिनर डज, ही हैज टू फ्रेम आउट द क्वेश्चंस. उसने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो समटाइम्स ये देखो, वो सीधा तो लिखने से रहा. अब सपोज करो उसने आइडियलिज्म डालना है,
ओके, तो वो सीधा नहीं लिखेगा, वो ये लिख देगा डिफाइन द आइडियलिज्म एंड राइट द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस एंड फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। तो इसको समझना जो मैं आपको बोल रहा हूं, ओके, ये आप नोट भी कर लेना, इवन मैं आपको क्वेश्चंस में भी दिखा दूंगा। ओके, तो तीन चार बातें हैं वो पहले आप नोट कर लो। ये देखो, ये जो 5 इजम्स हैं, राइट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। अब मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया, ठीक है। इसका हम ये भी हटा, इसका ये चलो ये रहने देते हैं, ग्रीन वाला पॉइंट। ओके, आप ये देखिए, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमें याद क्या करना है? हमें याद सिर्फ 3 चीजें करनी है, राइट। कौन कौन सी 3 चीजें? ये देखो, ये जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना, ये विच आई हैव सिलेक्टेड। ओके, इस सारे को पहले मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है, फिर मैं देन आई शो यू दिस। ये देखो, ये दरअसल यहां तक है, ये देखो सिलेबस, एक्चुअली ये है सिलेबस। हाँ, अब ये देखो, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ये देखो, ये 5 इजम्स हैं। ओके, ये बहुत बड़े हैं, एक अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। आइडियलिज्म एक बुक है, नेचुरलिज्म एक बुक है, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक बुक है। लेकिन इसमें से व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको ये चीजें लर्न करनी है सिर्फ। ये देखिए, ये जो अब मेरी इसको मैंने बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया। ओके, क्या क्या है 3 चीजें? ये देखो, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, एक आपको सिर्फ ये याद करना है। दूसरा नॉलेज, ये याद करना है। तीसरा वैल्यूज, ये याद करना है। ओके, अब इनको नोट कर लो, क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ रियलिटी को बोलते हैं मेटाफिजिक्स, नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टियोमोलॉजी, एंड वैल्यूज को बोलते हैं मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी लिख लो। ये 3 पार्ट होते हैं, 3 स्कोप होते हैं फिलॉसफी के। ओके, तो वो देखो, कभी क्वेश्चन डाल देगा कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, इसका मतलब एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम यू व्हाट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। यू गॉट द पॉइंट, राइट। कभी वो कंसेप्ट ऑफ रियलिटी लिख देगा, नॉलेज लिख देगा, वैल्यूज लिख देगा, या कभी वो लिख देगा मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। बात एक ही है इनका। तो आपको मोटा मोटा आपने याद रखना है, हमें इन पांचों में से, पांचों इजम्स में से क्या याद करना है? हमें इन पांचों इजम्स की 3 चीजें याद करनी है। क्या क्या? नंबर 1, इनके फॉर्मुलेट्स, और इनके मेन, इनका फिलोसफीज या टाइप, या इनके पार्ट, यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ठीक है, नंबर 1। सेकंड, आपको यू हैव टू लर्न द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस के अंदर नोट कर लीजिए क्या क्या आ जाता है। 3 चीजें, अगेन 3 चीजें, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स एंड करिकुलम। ठीक है, यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन कैसा होगा, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा। ओके, और ये देखो, अब आगे ये 3 चीजें होगी ना, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। अब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में ये देखो आ गया एम, राइट, ये एम आ गया, ये कंटेंट आ गया, कंटेंट मींस वही करिकुलम आ गया। ओके, और ये मेथड ऑफ एजुकेशन। बस हमें यही करना है, ठीक हो गया। अब चाहे क्वेश्चंस आपको आइडियलिज्म का आए, प्रैग्मेटिज्म का आए, नेचुरलिज्म का आए, एग्जिस्टेंशियलिज्म का आए, और साथ ही यू हैव टू लर्न, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इवन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी भी आए तो भी यही लिखना है। अगर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर क्या क्या था, बुद्धिज्म और इस्लामिक, ये देखो मैंने आपको कहा ना पहले ऑरली ये याद करो सिलेबस। ठीक है, वंस यू लर्न द सिलेबस सारा कुछ याद हो जाएगा अपने आप ही, राइट। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर है बुद्धिज्म और इस्लामिक, राइट। तो बुद्धिज्म का भी 3 चीजें ही याद करनी है। क्या क्या? मेजर फैक्ट्स, मेजर फैक्ट्स के अंदर आ गया मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, राइट। देन एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, उसके अंदर भी 3 चीजें आ गई, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, बस, और उसकी एजुकेशनल फिलोसफी हल्की सी। ओके, और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंदर अगर वेदांत आए तो भी यही लिखना है 3 चीजें, अगर संख्या आए तो भी 3 चीजें लिखनी है, राइट। 2 यूनिट हो गए आपके, 4th वाला यूनिट आ जाओ। 4th वाले यूनिट में क्या है? विवेकानंद, टैगोर, गांधी और अरबिंदो। So you don't have to write the life sketch of Aurobindo, Tagore, Gandhi, where they have born, what they have done it. Nothing. You don't have to write. You just have to write the 3 चीजें, वही 3 चीजें। ठीक है, क्या क्या? एजुकेशनल फिलोसफी तो लिखनी है सभी की, ठीक है, एक आधे पेज के अंदर, और 3 चीजें, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस,
मेजर फैक्ट्स, और इसका जो थर्ड वाला पार्ट आ गया, फर्स्ट थर्ड एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, विवेकानंद, अरबिंदो और टैगोर की, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट भी कर लेंगे, डोंट वेरी, लॉजिकल एनालिसिस, एम्पिरिसिज्म एंड पॉजिटिविज्म, ये भी इजी है। आप अब हम बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर लो, ठीक है, फटाफट। यूनिट 1 में से मैं आपको बता रहा हूं, आपने क्वेश्चंस करना है, डिफाइन द नॉलेज, टाइप्स एंड सोर्सेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, बड़ा ही इजी है। ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ आपने अपनी बुक में से याद करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, बाकी सारे मेरे नोट्स में से करो। ओके, सारा सारा वही आपको आ जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, 4 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो 4 क्वेश्चंस आज मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ये नोट कर लो, ओके, डिफाइन द नॉलेज, यू नो, देन नेचर एंड टाइप्स, सोर्सेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, राइट। अब सेकंड में से यूनिट 2 आ गया। अब यूनिट 2 में से को इसमें से एक एक दो चीजें आप कर लीजिए, ठीक है, इधर से आप कर लो, आई विल सजेस्ट यू वेदांत कर लो, वेदांत इजी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सांख्या फिलॉसफी में वो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल द 25 थिंग्स, और सांख्या फिलॉसफी टॉक अबाउट द 2 थिंग्स, प्रकृति एंड पुरुष, राइट, फिर वो आगे उसके एलिमेंट्स 5 फिर 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो वो लिटिल बिट यू कैन से दैट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, राइट, और वही पर्टिकुलर चीज लिखनी पड़ेगी सांख्या के अंदर आपको। तो यू हैव टू गो थ्रू द वेदांत। वेदांत बड़ा ही सिंपल है, सीधा है, ठीक है, एक ही सोर्स की बात करता है, ऑल द रियलिटी, ऑल द metaphysics, epistemology, axiology we get from the, ekam. Ekam, he talks about the Brahma. Brahma is the reality. He talks about the Brahma is the creator and destroyer. ठीक है, मतलब खत्म करने वाला दुनिया भी वही है और पैदा करने वाला भी वही है, राइट। तो गो फॉर द वेदांत, ठीक है ना, आपका काम आसान कर दिया वेदांत। और नीचे में से आप गो फॉर द बुद्धिज्म, राइट, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर इसके कई बार 4 नोबल ट्रूथ आ जाते हैं और इसके 8 फोल्ड पाथ आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहा हूं आपको साथ के साथ, ओके। बुद्धिज्म अगर आप करना है तो लॉन्ग क्वेश्चंस तो करना ही करना है, इसके साथ शॉर्ट भी आपका कवर हो जाता है। तो याद रखना, बुद्धिज्म में कई बार इवन 90% लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ की बात की है बुद्धिज्म ने, वो भी आया है, और 8 फोल्ड पाथ भी आया है, ठीक है ना, ये भी नोट करते जाओ, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके हो रहे हैं साथ के साथ, ओके। उसके बाद ये हो गया यूनिट, ये वाला भी हो गया हमारा यूनिट, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, और फोर्थ के अंदर आप ये देखो, अब ये 7th वाला पार्ट आप कर लीजिए, ठीक है, विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर और गांधी, ओके। अब इसमें से भी आपके आपके लिए इजी मैं बता देता हूं, पहले थर्ड वाली बात कर लेते हैं हम, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये बहुत ही इजी है, ओके। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये सारे कर लो, बिकॉज अगर आप यहां पे आइडियलिज्म करते हैं, ओके, व्हेन यू नो डू द आइडियलिज्म कंप्लीटली, तो गाइस आपको एक फायदा हो जाना है। फायदा क्या हो जाना है, यहां पर जो गांधी जी हैं, गांधी जी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी एक आइडियलिस्टिक पर्सन थे। तो जो आइडियलिज्म की फिलोसफी है, मैक्सिमम 70-80% तो वो गांधी में ही कवर हो गई है, राइट। बाकी वो गांधी के अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन है, वो आपको याद करनी है। अगर आप बात करें एजुकेशनल इंप्लीकेशन, आइडियलिज्म के एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं, वो भी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, पहला वही होगा। और गांधी के भी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वो भी यही है, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना, मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वहां पे भी आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिलेगा, राइट। और अगर वहां से आप नेचुरलिज्म करते हैं, नेचुरलिज्म तो है ही बड़ा इजी, नेचुरलिज्म में तो हमें एक ही बात करनी है कि भाई नेचुरलिज्म वाले, नेचुरलिस्ट जो है, नेचुरलिस्ट फिलोसफी टॉक्स अबाउट द एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द नेचर, नथिंग इज बिहाइंड द नेचर एंड नथिंग इज बियॉन्ड द नेचर, मतलब नेचर के पड़े भी कुछ नहीं है, नेचर से पहले भी कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द नेचर, इवन मेटाफिजिक्स, थ्योरी ऑफ रियलिटी वी गेट फ्रॉम द नेचर, एपिस्टेमोलॉजी वी गेट फ्रॉम द नेचर, एक्सियोलॉजी वी गेट फ्रॉम द नेचर, ओके। तो नेचुरलिस्टिक कोई गॉड को नहीं मानते, कोई नेचुरलिस्टिक गॉड को ही मानते हैं, मतलब नेचर को ही गॉड मानते हैं, वो कोई सुपर नेचर चीज को नहीं मानते,
ओके, तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये आप एक पेज के ऊपर ही आप लिख लो, ताकि आपका ना आसान हो जाएगा काम। ओके, अब ये आइडियलिज्म है, राइट। तो अगर आप नेचुरलिज्म की हम बात कर रहे थे, तो नेचुरलिज्म अगर आपका कवर हो गया ना, तो गाइस जब आप आओगे विवेकानंद के ऊपर या अरबिंदो के अंदर, इसको छोड़ देते हैं, टैगोर की बात करते हैं। तो टैगोर में आप ये देखेंगे कि टैगोर का ज्यादा फिलॉसफी नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी है। नेचुरलिज्म के कारण कई पॉइंट आपके टैगोर वाले भी कवर अप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारे कर लेते हो तो आपके दो क्वेश्चंस तो यहीं पे कवर हो ही गए। बाकी विवेकानंद और अरबिंदो करना है, वो भी आपके इजी है, ठीक है जी। तो मैं इसको सम अप करता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने लर्न करना है नॉलेज का यूनिट 1 में, राइट। मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, टाइप, सोर्सेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और ये क्वेश्चंस आपने बुक में से करना, बहुत ही इजी दिया हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में से करने हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपने वेदांता करना है, ओके। और इधर से बुद्धिज्म आपने करना है, ठीक है। इस्लामी को शॉर्ट के लिए आप कर लेना, ठीक है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस आपने वेदांता और बुद्धिज्म पे देना है। और इधर वेस्टर्न स्कूल ऑफ ए फिलोसफी में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ओके, इनकी तीन चीजें ही करनी है। और ऐसे ही विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर, गांधी की भी तीन चीजें ही करनी है, ठीक है। तो ये भी आपका कवर अप हो जाएगा, राइट। अब आप इसको समझते हैं। अब पीपीटी में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अलग से ना कॉपी में एक थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ एक आपको ना, यू हैव टू लर्न द नेम्स, है ना। नेम्स वो क्या बात करता है, तो ये थोड़ा सा आपको ना आधा घंटा 1 घंटा आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट, सिलेबस को सामने रखते हुए। तो व्हाट यू हैव टू राइट, अगर आप व्हेन यू टॉक अबाउट द आइडियलिज्म, ये देखो आइडियलिज्म की बात आ रही है, तो उसको लिख लो। आइडियलिज्म की अगर बात आएगी तो वी विल टॉक अबाउट, किसकी बात करेंगे, फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, प्लेटो की बात करेंगे हम। तो आइडियलिज्म है तो वहां पे प्लेटो आ गया, रियलिज्म है तो अरिस्टोटल आ गया, राइट। नेचुरलिज्म है तो नेचुरलिज्म का फादर कौन है, जीन जैकस रूसो, राइट, नेचुरलिज्म का फादर है, राइट। और इवन फिर आ गया प्रैग्मेटिज्म आ गया, प्रैग्मेटिज्म में विलियम जेम्स की बात होगी, ओके। अभी हम करेंगे पीपीटी के अंदर, ओके। और प्रैग्मेटिज्म के अंदर विलियम, प्रैग्मेटिज्म के अंदर होगी और बात, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, राइट। प्रोजेक्ट मेथड के फाउंडर कौन थे, ठीक है, वो वाली भी इसके अंदर ही बात होगी। किलपैट्रिक, यस, प्रैग्मेटिज्म के अंदर किलपैट्रिक नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर कर्कगार्ड याद करना पड़ेगा नाम, ठीक हो गया ना, राइट। और अगर हम यहाँ पे वेदांत की बात करते हैं, तो वेदांत में आगे नोट कर लो, वेदांत में दे टॉक अबाउट द ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही सारी चीजें ओरिजिनेट हुई हैं, राइट। अगर हम सांख्या की बात करेंगे, तो सांख्या में वी हैव टू टॉक अबाउट कपिल मुनि, कपिल ऋषि हुए हैं ना, उन्होंने सांख्या फिलोसफी दी है, राइट। ये ओल्डेस्ट फिलोसफीज हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ओल्डेस्ट स्कूल्स हैं ये, ठीक है। तो सांख्या में कपिल मुनि की बात होगी, और सांख्या बात करता है दो चीजों की, कौन सी, प्रकृति और पुरुष की बात करता है, राइट। प्रकृति बात करती है एक्सटर्नल थिंग्स की, यानी कि नेचर की बात करती है, ओके। और पुरुष जो है, पुरुष का क्या मतलब है, पुरुष का मतलब है सेल्फ, ओके, राइट। वो सेल्फ है जो एक इटर्नल रियलिटी है, ओके। तो थोड़ा सा आप ये इसको आप नोट कर लेना है, राइट। बुद्धिज्म में आप ये लिख लो, बुद्धिज्म के आगे 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ, है ना, आपको वो इजी हो जाएगा याद करना। तो चलिए गाइस, हमारा सिलेबस, हाँ ये वाला पॉइंट रह गया, 8वें वाला पॉइंट। अब ये लॉजिकल एनालिसिस, एम्पिरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इनके आगे लिख लो, ये न्यू फिलोसफीज हैं। अभी जो आजकल की फिलोसफी है, क्या फिलोसफी है आजकल की, बताइए। आजकल की फिलोसफी, दे टॉक अबाउट empiricism, they talk about experience, they talk about हमारी जो 5 senses हैं, है ना, we get the experience, we get the knowledge, कहां से, from the 5 senses। तो ये आजकल की फिलोसफी पिछली सारी फिलोसफीज को रिजेक्ट करती हैं, ओके। जितनी भी पिछली फिलोसफीज हैं, मेटाफिजिकल फिलोसफीज, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, है ना, इन सारी फिलोसफी को ये रिजेक्ट करती हैं बेसिकली। तो दे टॉक अबाउट कि एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द experience, we get from the experience, and we even आप ये लिख सकते हैं कि experience is the gateway of the knowledge, ओके। तो ये कुछ एक पॉइंट आगे आप याद कर लेना, okay guys। Now I start everything, okay, from the ppt, 2-3 ppts I have made up, so that our first part would be clear from these, right।
तो ये भी थोड़ा सा मैं तेजी के साथ चलूंगा, आपने इसको नोट करते रहना है, राइट। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ये हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्या चीज है? एजुकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ऑफ ए इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ओके, एजुकेशन को हम इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड एंड इन द ग्रेव। वो देखो झूले से स्टार्ट होती है और ग्रेव में, मतलब आदमी मर जाता है, एजुकेशन डजंट एंड। याद रखो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल और कॉलेज तो भी आप एजुकेशन गेट कर रही हो। एजुकेशन को कभी भी यू डोंट हैव टू लिमिट द एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द स्कूल, कॉलेजेस एंड फोर वॉल्स। ओके, विदाउट दिस यू कैन गेट द एजुकेशन। गाइज, ये जो कंसेप्ट आया है, एजुकेशन का जो कंसेप्ट आया है, स्कूल्स का जो कंसेप्ट आया है, ये तो अभी ही सिर्फ आया है 100-150 साल पहले। एक्सक्यूज मी, 100-150 साल पहले आया कंसेप्ट। 150-200 साल पहले कौन से स्कूल होते थे? ऑल द गुरुकुल्स, मदरसे होते थे, राइट। वहीं पे एजुकेशन हम गेट करते थे। ओके, सो एजुकेशन इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, राइट। हर तरह की एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, दैट कम्स अंडर द एजुकेशन, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं बस, ठीक है। ऋग्वेद लिखते हैं यहाँ पे, एजुकेशन इज द समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, राइट। ऋग्वेद कहता है। उपनिषेद कहता है एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। और गांधी जी क्या बोलते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये चारों डेफिनेशन आपने याद करनी है और आपको लिख के भी आनी है वहां पर। यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। ओके, मतलब ये जरूर गांधी की और विवेकानंद की तो कर ही लो ना, वो तो आपके सिलेबस के अंदर है, राइट। गांधी जी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन इन मैन एंड चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और स्वामी विवेकानंद बात करते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। कि जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ही सारी चीजें हैं, राइट। ये जो आप लोग सोचते हो ना कि भाई आपने पढ़ाया तब बच्चे को समझ आया, इट इज ए रॉन्ग थिंग। टीचर का काम क्या होता है? टीचर डज नॉट मीन, यू नो, टीचिंग डजंट मीन दैट पुटिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। याद रखना, टीचिंग क्या चीज होती है? व्हाट इज टीचिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? टीचर कौन है? टीचर एक स्टिम्युलेटर है। द रोल ऑफ टीचिंग इज टू ड्रा आउट ऑफ द बेस्ट, निकालना होता है एजुकेशन। हाथ समझ आ गया आपको? ठीक है। आप कहते हो ना मेरा तो मैथ का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ साइंस? साइंस वाला कहता है मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ हिंदी, मैथ्स वाला कहता है मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ साइंस। ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ाना आता है, इफ यू नो हाउ टू टीच, यू कैन टीच एनी ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज टीचिंग इज द आउट ऑफ द बेस्ट। टीचिंग का मतलब तो निकालना है, टीचिंग का मतलब डालना थोड़ा उनके माइंड के अंदर। जो स्वामी विवेकानंद ने बोल दिया बाय एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन, राइट। ये देखो डेफिनेशन इनकी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ये फिलॉसफी देखो बच्चे, फिलॉसफी क्या चीज होती है, ठीक है। वैसे तो फिलॉसफी दो वर्ड से निकली है, फिलोस प्लस सोफिया। ओके, फिलोस का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विजडम। तो फिलॉसफी का लिटरल मीनिंग हो गया यू नो लव ऑफ विजडम। बेसिकली फिलॉसफी कब स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, व्हेन द प्रॉब्लम क्रिएट्स। ओके, कोई भी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो वो फिलॉसफी, उसका हम सहारा लेते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। 1-2 मिनट के अंदर हमें फिलॉसफी की जरूरत क्यों है? और ये न्यू चैप्टर नहीं है फिलॉसफी का, याद रखना। आप सभी यू आर गोन थ्रू द फिलॉसफी फ्रॉम द मोमेंट यू केम इन दिस वर्ल्ड, राइट। आपको 20 साल 25 साल जो भी आपकी एज है, ये सारी एज के अंदर व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज योर फिलॉसफी। हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स को, यार अपनी फिलॉसफी बंद कर, तो उसने 25-30 साल के अंदर जो जो वैल्यूज सीखी हैं, जो नॉलेज ली है, जो उसका माइंड मेकअप हुआ है, राइट, वो उसकी फिलॉसफी है। ओके, सो रेने देकार्ते हुए हैं, फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं, बहुत बढ़िया इनकी डेफिनेशंस है और बहुत बार अगर आप लिख आते हो तो यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स, राइट। रेने देकार्ते फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं, क्या बोलते हैं?
देखो पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट इनफ टू हैव ए गुड माइंड, द मेन थिंग इज टू यूज इट वेल। ठीक है, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, ये नहीं होता। आप उसको यूज करो अच्छा, अगला बंदा बोले अच्छा है। ठीक है, द मेन थिंग इज टू यूज इट वेल। उस माइंड को आपने यूज करना है। एक एक रिसर्च है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक एक साल से लेके 80-90 साल तक, जब तक एवरेज जो एज है बंदे की, ठीक है, हम सिर्फ अपना 2 या 3% माइंड सिर्फ यूज करते हैं। आप ये देख लो, आउट ऑफ ए 100। अब आप पूछोगे सर बाकी कहां यूज होता है? बाकी की बस इधर उधर चीजों में। मतलब इफ यू आर नॉट फोकसिंग, तो आपका वो जो माइंड का अटेंशन है आपकी, वो दूसरी चीजें आप ले लेती हैं दिमाग के अंदर, राइट? तो वो एक अच्छे ढंग से वो यूज ही नहीं हो पाता, सिर्फ 2 या 3% ही यूज हो पाता है। मतलब इतनी पावर है माइंड की, आप ये देख लीजिए, राइट? अब फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी की हमें जरूरत क्यों है? टू थिंक, नंबर वन, टू थिंक, स्पीक, राइट क्लियरली एंड क्रिटिकली। क्रिटिकली पॉइंट है यहां पे बहुत बढ़िया। मतलब क्रिटिकली आपको बताना है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टू फॉर्म ओरिजिनल क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट आ गया। अरे फिलॉसफी हमें बोलती है कि सोल्यूशन की बात करनी है। आज के बाद आप स्टॉप बीइंग टीचर, बीइंग टीचर्स, स्टॉप क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, टेलिंग द प्रॉब्लम्स, गो फॉर द सॉल्यूशन। टीचर मालूम है कौन है? टीचर एक फिलोसफर भी है। डेफिनेशन है ना, टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। किसने कहा था? टैगोर ने कहा था शायद, ठीक है ना? सो टीचर एक फिलोसफर भी है। इफ यू क्रिएट प्रॉब्लम्स, अरे आप टीचर हो, आपको तो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। समाज को आपने एक अच्छा रास्ता दिखाना है। ठीक है ना? चार बंदों के बीच में बैठो, पता लगे आप टीचर हो, राइट? आपको तो यू शुड बी ए वेरी गुड लर्नर, राइट? एंड नेक्स्ट है टू डेवलप रीजनड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वंस व्यू, राइट? एंड टू अप्रिशिएट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ओन्स। अगर आपके व्यू से अलग कोई बंदा बात कर रहा है, गाइस यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, ओके? यू हैव टू अप्रिशिएट, ओके? हम क्यों उसके साथ, व्हेन व्हाई वी स्टार्ट द पेटी फाइट्स एंड अदर थिंग्स, ओके? ओके, समटाइम्स क्या होता है, वी डोंट स्टार्ट द पेटी फाइट्स, बट हम मन के अंदर अब कर लेते हैं और ऊपर ऊपर से उसको बड़ा अच्छा बन के दिखाते हैं। तो ये भी वो गलत की तरफ जाती है, राइट? नेक्स्ट है टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड टू इन्वेस्टिगेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन ए सिस्टमैटिक फैशंस। सो टीचर का बहुत रोल होता है गाइस। बहुत बढ़िया सिलेबस है आपका, राइट? टीचर बनने के लिए, प्रिंसिपल बनने के लिए ऐसी बात नहीं है, क्या नाम, आज टीचर और प्रिंसिपल्स की बहुत रिस्पेक्ट है। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू मेक यूर सेल्फ सो अपडेटेड, सो दैट एवरी पर्सन शुड अप्रिशिएट टू यू। ठीक है, सभी आपको अप्रिशिएट करें, और आपका जो मेन है, मेन पर्पस ही आपका ये होना चाहिए। इफ यू आर नॉट ए गुड लर्नर, यू कांट बिकम ए गुड टीचर, राइट? एवरी डे। और हमारा काम क्या है? हमारा काम प्लम्बिंग का काम थोड़ा है, प्लम्बर थोड़ा है, इलेक्ट्रिशियन थोड़ा है, हम कोई और कारपेंटर थोड़ा है। हम कौन है? हम टीचर हैं। हमारी लाइफ टीचिंग में जानी है, ठीक है? वी विल बिकम द टीचर, विल बिकम द प्रिंसिपल, वी बिकम द लेक्चरर, राइट? तो हमें, इफ द डायरेक्शन इज क्लियर, तो फ्रॉम टुडे वी हैव टू वर्क ऑन इट, राइट? बुक्स के साथ प्यार करो, सेल्फ स्टडी आप करो, गांधी को पढ़ो, आप टैगोर को आप पढ़ो, राइट? तो वो आपको लगेंगे कि आज वो आपके साथ हैं, और वो देखो वही आपके सिलेबस के अंदर है, राइट? अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है? स्कोप, एरिया, ब्रांचेस ऑफ ए फिलोसफी, ये तीन चीजें आपको याद करनी है। अब मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोलॉजी और एक्सियोलॉजी, राइट? ये आपको आएंगी ही आएंगी। आप ये देखो, दैट कम्स अंडर द मेजर फैक्ट्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है थ्योरी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज, और एक्सियोलॉजी थ्योरी ऑफ वैल्यूज, ठीक है? देखो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, चलो ऑलमोस्ट ये आपको क्लियर ही है, ना? थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात करेंगे, मतलब मेटाफिजिक्स का मतलब गॉड की बात करेंगे, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, वेयर वी हैव टू गो, है ना? ये सारी की सारी थ्योरी ऑफ रियलिटी है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेज कहां से आती है, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द नॉलेज। और एक्सियोलॉजी बात करेंगे ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की, राइट? अब ये देखो, ये आपको हमेशा क्वेश्चंस आया भी हुआ है, कई बार जुड़ के
ठीक है, बड़ा क्वेश्चंस भी बन जाता है और कई बार शॉर्ट नोट भी बन जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी? ठीक है, पहले मैंने आपको एजुकेशन का बताया। एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ ए इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। एजुकेशन क्या है कि हमारी होल लाइफ इज द एजुकेशन है। जॉन डेवे हुए हैं, जॉन डेवे, प्रेगमेटिज्म के अंदर ये नाम आपने याद रखना, लिख लो, जॉन डेवे। ठीक है, जॉन ड्यू भी बोलते हैं, डेवे भी बोलते हैं, प्रोनाउंस आप जैसे मर्जी कर लीजिए, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, JOHN, जॉन DEWEY। ठीक है, जॉन ड्यू ये लिखते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी आई थिंक 1936 के अंदर, कि ऑल दी लाइफ इज एन एजुकेशन और ऑल दी एजुकेशन इज ए वट एवर, मतलब वी गेट फ्रॉम दी लाइफ अवर एक्सपीरियंस, वो सारी एजुकेशन है। मतलब ऑल द एजुकेशन इज एन एक्सपीरियंस एंड ऑल द एक्सपीरियंस इज द एजुकेशन, राइट। तो वो ये एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में दो डेफिनेशंस भी हमने दो तीन कर ली हैं, स्वामी विवेकानंद की भी, गांधी की भी। ठीक है, फिलोसफी हमने कर ली। फिलोसफी क्या चीज है? लव ऑफ विजडम है। और वेन एवर प्रॉब्लम्स कम्स, फिलोसफी तब स्टार्ट होती है। और फिलोसफी टॉक्स अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई, फिलोसफी ने उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसफी एंड एजुकेशन, क्योंकि ये आपको तब तक नहीं आएगा ना जब तक फिलोसफी और एजुकेशन क्लियर ना हो। अब आपको फिलोसफी और एजुकेशन क्लियर हो गया, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो जेम्स रोस हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ये भी याद कर लेना, बड़ी इजी है। उन्होंने कहा है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, one is implemented by the other। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। रॉस, जेम्स रॉस, ROWS, जेम्स रॉस हैज सेड दैट ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, दिल में ही सोचना है, नोट कर लेना है कॉपी के ऊपर ही, ओके, उसका मैं आंसर भी दे दूंगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एजुकेशन और फिलोसफी अगर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हैं, एज द जेम्स रॉस सेड, तो मुझे आप बताओ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कौन सी साइड है? क्या एजुकेशन प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? क्या फिलॉसफी प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? राइट, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसी में से ढूंढना, इसी में से पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना लाइफ में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, राइट। विदाउट एजुकेशन, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहां पर नेक्स्ट में, ये देखो, यहां पे जहां पे मेरा कर्सर है, विदाउट, ये देखो यही कर्सर है जो, राइट, आगे नजर। विदाउट फिलोसफी, विदाउट फिलोसफी एजुकेशन वुड बी अ ब्लाइंड एफर्ट, एंड विदाउट एजुकेशन philosophy would be crippled, will be paralyzed, will be disabled, right। तो गाइस शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ठीक है, जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल साइड है, फिलॉसफी एक थियरी साइड है, ओके, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो भी वट एवर द फिलोसफी वी गेट, या हमारे सीनियर्स या हमारे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो भी फिलोसफीज उनकी मिलती है उनको, तो उन फिलोसफीज को वो एजुकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज आप स्कूलों के अंदर जो पढ़ा रहे हो, कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फिलोसफी, जो फिलोसफी बन चुकी है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आज से 20-25 साल पहले कोई ना कोई इंडियंस डेलीगेट्स होंगे, बाहर गए होंगे, अब्रॉड गए होंगे, उन्होंने देखा होगा वहां पर कंप्यूटराइजेशन है ना, सारे लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, तो उनकी एक फिलोसफी बन गई। ओके, व्हेन दे केम बैक एट इंडिया, तो उन्होंने बोला ये इंडिया में भी होनी चाहिए। कैसे होगा? एजुकेशन माध्यम है। तो उन्होंने सभी स्कूल्स में एजुकेशन में कंप्यूटराइजेशन कर दी। तो अब आप देखो कि पहली क्लास से बच्चा, उसको कंप्यूटर की भी नॉलेज है, राइट। तो वो फिलॉसफी बन गई थी, राइट, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेके, और उसको इंप्लीमेंट किसने किया? एजुकेशन ने। ठीक है ना, तभी तो लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, एजुकेशन इज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ फिलोसफिकल थॉट। ठीक है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने जरूर करना है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, ये नोट कर लो, हमेशा आता होता है। एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, राइट। तो अपन इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं। ठीक है, एजुकेशन क्या चीज है हमारी, राइट, आप चाहे नोट भी करते जाओ। एजुकेशन इज ए फुल ऑफ प्रॉब्लम्स,
प्रॉब्लम्स है एजुकेशन के अंदर, राइट। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, टीचर की प्रॉब्लम है, सिलेबस की प्रॉब्लम है। व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वहां पे बच्चे की सेटिंग्स नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम्स है। स्कूल के अंदर यू हैव द टीचर ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, साउथ के टीचर आ गए, नॉर्थ में है ना वो कुछ कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब इन प्रॉब्लम्स को हम फिलॉसफिकली, फिलॉसफी के प्रिंसिपल से, फिलॉसफी के एप्लीकेशन से जब हम ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इट इज कॉल्ड एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, एक लाइन लिख लो जो मैं बता रहा हूं। व्हेन फिलॉसफी इज अप्लाइड टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स in order to solve the problem, in order to solve the educational problems, called educational philosophy। ये देखो यही लिखा होगा, एजुकेशनल फिलोसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रोसेस। समझ गए ना? तो बच्चे, स्टूडेंट के ऊपर अपना टेम्पर लूज कर देना, हाँ, ये टीचिंग नहीं हुई। ठीक है ना? मतलब अगर आप फिलोसफिकली अगर उसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब यू आर नॉट ए गुड टीचर, यू आर लूजिंग द टेम्पर, और जो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं आप कर रहे हो, तो यू आर नॉट ए गुड फिलोसफर, यू आर नॉट ए गुड टीचर। इफ यू हैव टू बिकम ए गुड टीचर, यू शुड बी ए गुड फिलोसफर, यू शुड बी ए गुड साइकोलॉजिस्ट, राइट? It is an attempt by the educationists and teachers to take philosophy into the field of education to solve the problems। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया आपको? बाकी डिटेल में तो आपके पास नोट्स हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब ये देखो आ गया फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये सारी तीनों चारों आ गई हैं, चारों पांचों आ गई हैं। इसकी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये। मतलब इनके सारे फाउंडर मतलब वेस्टर्न के हुए हैं। तो इनमें हमें वही तीन चीजें करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ये देखो क्या क्या करना है, विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। बस तीन चीजें। और अगेन फिर तीन चीजें, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, एम्स, कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये देखो ये लिख ही दिया मैंने तीन चीजें, ये भी आप नोट कर लो, ये वाली स्लाइड नोट कर लो या क्लिक कर लो। ओके, जो भी whosoever is seeing this lecture on the YouTube, okay, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियलिज्म लिटिल बिट लिखना है, मतलब कुछ भी आ जाए। मतलब इसमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी भी डाल लो, बुद्धिज्म भी आ जाए, इस्लामिक भी आ जाए, और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में और क्या था, बुद्धिज्म, इस्लामिक और वेदांत। ठीक है ना, और संख्या, है ना, ये भी आ जाए। इंडियन थिंकर्स भी डाल लो इसके अंदर। कौन कौन है इंडियन थिंकर्स? गांधी जी, टैगोर, अरबिंदो, विवेकानंद। याद रखो ये चार थिंकर्स हुए हैं, इन्होंने बहुत वर्क किया एजुकेशन में। आपकी लाइब्रेरी में इन चारों की बुक होनी चाहिए आपके पास। यू शुड हैव, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो ये सारा आ जाए तो क्या लिखना है आपने, इनकी मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ, है ना, आइडियलिज्म, बुद्धिज्म, गांधी जी, टैगोर, मेजर फैक्ट्स। उसके अंदर तीन चीजें आ गई, मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोलॉजी, एक्सियोलॉजी। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस के अंदर भी तीन चीजें आ गई, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम या मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है आपने। ओके, ये लेक्चर एक बार हमारा शॉर्ट हमारा पहले भी हो चुका था। अब हल्का सा मैं इसका बेस बना के, बेसिकली मैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के ऊपर आऊंगा, वो मैंने आपको करवानी है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, क्योंकि वो डिस्कस नहीं हुई थी अभी, राइट? ये वाला डिस्कस हो भी गया था, राइट? और ये स्कोप एरिया ये तो पता ही आपको, है ना। तो एक आइडियलिज्म है, छोटा सा हम आइडियलिज्म कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, ताकि आपका बेस बन जाएगा, आपको याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा पिछला लेक्चर, एंड देन वी विल मूव टू द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, राइट? अब देखो, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियलिज्म, मेजर फैक्ट्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एजुकेशनल इंप्लीकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग, और लास्ट में कंक्लूजन्स, राइट? तो आइडियलिज्म क्या चीज है? आइडियलिज्म के ये फाउंडर हैं जिनको आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लेटो हैं। तो प्लेटो क्या करते हैं? प्लेटो, आइडियलिज्म टॉक्स अबाउट, या प्लेटो टॉक्स अबाउट, idealism consists of the thoughts, consists of the ideas. Idealism talk about the mind rather than the material object. Clear? According to the Plato, ultimate reality lies in the idea. Ideas are the real thing and things are not real. बस खत्म, एक लाइन से देखो क्लैरिटी होगी आपको। Idealism talks about ideas. Idealism talks about thought. Idealism talks about mind. Ultimate reality according to the idealism is
these things, ideas, mind, thought, and things are not real. Idealism says that whatever we are looking with our open eyes, ponds, rivers, ये जितना भी कुछ हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, आइडियलिज्म कहता है ये रियल नहीं है, राइट, ये अनरियल है, राइट। रियल क्या चीज है? आइडियाज, थॉट्स हैं। और ये आइडियाज, थॉट्स कहां रहते हैं? इनटू अवर माइंड, ये चैम्बर ऑफ माइंड कहा है इसने, ठीक है। तो ये सोक्रेट, प्लेटो, ये सारे के सारे इन्होंने आइडियलिज्म को सपोर्ट किया है, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल, नॉट द मटेरियल वर्ल्ड। आइडियलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड की थोड़ी बहुत बात करता है, लेकिन ज्यादा जो एम्फेसिस है इट गिव्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी इज द स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल की ही बात करनी है आपने सारी। हम मेजर फैक्ट्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, हालांकि ये मैंने डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू द रियलिटी ऑफ द अकॉर्डिंग टू द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, मतलब आइडियलिज्म की रियलिटी क्या है? Idealism talks about the thoughts, ideas. Idealism talks about there is a one being. The name of a being is a God. God is the cause of causes, right? God knows everything. How the everything will be happened. Everything talks. He talks about the God, right? Epistemology, मतलब नॉलेज कहां से आती है? तो अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म वी गेट द नॉलेज फ्रॉम रीजनिंग, वी गेट द नॉलेज फ्रॉम क्या बोलते हैं, आत्मचिंतन करना, राइट, फ्रॉम द रीजनिंग, फ्रॉम द फ्रॉम इनसाइड वी गेट द नॉलेज। और एक्सियोलॉजी, ये बोलते हैं ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये ऑलरेडी बच्चा लेके पैदा होता है। हम जो बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं ना स्कूलों के अंदर, ये वैल्यूज है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आइडियलिज्म कहता है स्टॉप डूइंग दैट। आइडियलिज्म कहता है बिकम प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल बन जाओ, स्टूडेंट विल लर्न ऑटोमेटिकली, आपको देख के लर्न करेंगे, ठीक है, राइट। ये देखो हो गया मेटाफिजिक्स, रियलिटी, दे बिलीव इन गॉड। ट्रांसेंडेंटल माइंड, ट्रांसेंडेंटल माइंड, माइंड से परे भी रियलिटी है, राइट। रेने देकार्ते की डेफिनेशंस डाल सकते हो, एब्सोल्यूट सेल्फ की बात की है। एपिस्टेमोलॉजी देखो सेकंड में, आइडियलिज्म कहता है कि नॉलेज हम गेट करते हैं रैशनल फैकल्टी से, रीजनिंग से हम, ठीक है। चैम्बर ऑफ माइंड, ये देखो द नॉलेज लिव्स इन द चैम्बर ऑफ माइंड, ये माइंड के अंदर नॉलेज रहती है सारी। माइंड इज द एक्टिव एंड सच एज ए गेटवे ऑफ नॉलेज। एक्सियोलॉजी देखो इटर्नल है, परमानेंट है, ठीक है। द गोल ऑफ लाइफ इज द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू। कहता मैन शुड नॉट बी इन्वेंटर, मैन शुड बी डिस्कवरर। डिस्कवर करो, अरे आप टीचर हो, आप बच्चों में से निकालो, उनमें इंपोज मत करो, राइट। अब आ गया एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ एजुकेशन वो देखो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, कैरेक्टर फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ है, डेवलपमेंट ऑफ इटर्नल वैल्यूज है, कल्चरल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। इट मींस इन सारों को एक्सप्लेन करना है 4-4, 5-5 लाइंस के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी आपको, अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म education should be such type, it should lead to the self realization. Second, education should be such type, it should lead to the spiritual development. Education should be such type. Third point, education should be character building process. आपका करेक्टर बनाए एजुकेशन, राइट। एजुकेशन आपका करेक्टर लूज ना करे, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। हमारी इंडियन एजुकेशन वन ऑफ द टॉप लेवल एजुकेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की एजुकेशन आप देख लो, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस की एजुकेशन 10, 12, 14 साल के बच्चे को एक बैड बॉय बनाती है, बैड गर्ल बनाती है, ठीक है। हमारी एजुकेशन देख लो, इसके अंदर वैल्यूज हैं, प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इटर्नल वैल्यूज, कल्चरल डेवलपमेंट और यूनिवर्सलाइजेशन। देखो कितनी बड़ी बात होगी, ये कहते हैं पूरे यूनिवर्स में एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यही वाला पार्ट वो गांधी में भी आपका कवर अप हो जाएगा, जो मैंने पहले आपको कहा था। अब अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म हमारा करिकुलम कैसे होना चाहिए? तो करिकुलम आपको पता है, एक होता है ह्यूमैनिटीज होता है और एक साइंस होता है। तो बेसिकली दे गिव प्रायोरिटी टू द ह्यूमैनिटीज, मतलब ये कहते हैं हिस्ट्री, फाइन आर्ट, पोइट्री, एथिक्स एंड रिलीजन, इस तरह के सब्जेक्ट्स स्कूल के अंदर होने चाहिए और बच्चों को पहले पढ़ाए जाने चाहिए। लेटर ऑन फिजिकल साइंस के भी आप 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। ये कहते हैं कि भाई ज्यादा साइंस बच्चों को ना रॉबोट बनाती है, ज्यादा इस तरीके की चीजें, राइट। मतलब आपका प्योर हार्ट तो हो, ठीक है ना, इतने भी वो बन जाना रॉबोट, तो आप क्या दोगे समाज को?
मेथड ऑफ टीचिंग, ये कहते हैं सारे मेथड सारे सही हैं ऑलमोस्ट। लेक्चर मेथड के थ्रू भी पढ़ाओ, क्वेश्चनिंग के थ्रू भी, डिस्कशन भी, इमिडिएट मेथड भी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी, डायलॉग मेथड भी, ये देखो मेमोराइजेशन भी, इमिटेशन भी, राइट, वो सारी ठीक है। अब देखो ये फिर नेक्स्ट प्रैग्मेटिज्म आ गया, ठीक है ना। तो मैं इस पे अभी आता हूं ताकि प्रैग्मेटिज्म है, फिर इसके बाद आएगा नेचुरलिज्म, फिर आएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एक बार ये डिस्कस हो चुका है, तो मैं सीधा आता हूं आपके नोट्स में, ठीक है, क्योंकि मुझे ये है कि आपको मैं ये वाला डिस्कस नहीं हुआ था इंडियन स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, वो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। तो ये देखिए आपका नोट्स के अंदर ही फोर्थ क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा फोर्थ, ये रहा मेरे ख्याल से, नेचर ऑफ गोल्स ऑफ फिलोसफी वेदांत, और उससे पहले आ गया सांख्या, ये आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया, डन। इसको हम अगले पेज पे ले आते हैं यहाँ पे, ओके। ये देखिए बच्चे, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सांख्या। अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले जल्दी से इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी करवा दूं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्कस हो चुकी है हमारी, और उसकी आज मैंने डिस्कस कर भी लिया आइडियलिज्म, ठीक है, आपके साथ, ओके। संख्या को हम पढ़ते हैं। संख्या फिलोसफी क्या चीज है, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशंस इन डिटेल। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को समझना है, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट, वो कहता संख्या के बारे में बताओ, और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में क्या बताया था, वो तीन चीजें, कौन कौन सी, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो पहले हमें संख्या के बारे में एक आधे पेज का लिखना है, फिर तीनों चीजों को डिफाइन करना है डिटेल के अंदर, फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो संख्या फिलोसफी बेसिकली टॉक्स अबाउट, ये मैं आपको पीपीटी के थ्रू करवा देता हूं, ठीक है। पीपीटी में मैंने ये बनाया हुआ है आपका संख्या फिलोसफी, ये आ गया ये संख्या फिलोसफी, ठीक है। स्लाइड शो एंड दिस वन। तो संख्या फिलोसफी बेसिकली इट इज ए ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ओल्डेस्ट स्कूल फिलोसफिकल स्कूल है। तो सांख्या फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय द कपिल मुनि, कपिल ऋषि, सेज कपिल, राइट। सांख्या इज द ड्यूअल स्कूल ऑफ ए फिलोसफी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए मैटर एंड सोल व्हिच टॉक्स अबाउट प्रकृति एंड पुरुष, राइट। ये आपको याद करना है, लिखना है आपको, इसमें आप गलत नहीं लिख सकते, ठीक है, तुक्के नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें आपको लिखना है, तभी कह रहा हूं शुरू में पहले वो नोट कर लो आप, एक एक डेढ़ दो पेज का ना बना लो। अगर सांख्या आएगा तो हमें बात करनी है कपिल मुनि की, बात करनी है प्रकृति और पुरुष की बात करनी है। वेदांत आ जाता है तो हमें वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रह्मा। अगर आइडियलिज्म आ जाता है तो वी हैव टू टॉक अबाउट द प्लेटो, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन एजुकेशन के अंदर, राइट। प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा तो हमें जॉन ड्यू की बात करनी है। नेचुरलिज्म आ जाएगा तो हमें जीन जैकस रूसो की बात करनी है, राइट। कर्कगार्ड की बात करनी है। अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाता है तो ये थोड़ा सा बस नोट कर लो, जिससे क्वेश्चन याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे। तो सांख्या philosophy was given by the sage Kapil. According to the Sankhya philosophy, it is a dualistic philosophy. It talks about प्रकृति and पुरुष, ठीक है। प्रकृति एंड पुरुष को समझ लो क्या चीज होती है। पुरुष होती है हमारी आत्मा, सेल्फ, इसको इन्होंने बोला है पुरुष, राइट। प्रकृति बोला इन्होंने जो भी नेचुरल चीजें हैं उसको इन्होंने प्रकृति बोला है, राइट। ट्रू नॉलेज इज बीइंग, ये देखो पुरुष इज ए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आत्मा को, विचार को, ख्याल को, इसको बोलते हैं, याद रखना। आत्मा क्या चीज होती है, अभी तक आपने सुना ही होगा लेकिन कभी उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। वो ख्याल है हमारा, ख्याल, हमारा ख्याल, हमारा ओपिनियन, हमारी कॉन्शियसनेस, इसको आत्मा बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं ख्याल को हमेशा सच्चा रखो, इसका मतलब हमने अपनी आत्मा को प्योर रखा है, राइट। तो पुरुष, वो देखो पुरुष कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। पुरुष इज द कॉन्शियसनेस, इट इज द नॉलेज गेन थ्रू द वंस ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ। प्रकृति इज नेचर विच इज इटर्नल, राइट। यानी कि पुरुष है, पुरुष जो है वो इटर्नल है, ई वाला, ई इटर्नल, राइट, परमानेंट है। पुरुष सेल्फ हमारी इटर्नल है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। पुरुष हमारा कॉन्शियसनेस है, पुरुष हमारी सेल्फ है, पुरुष हमारी इटर्नल है, ETERNAL। पुरुष इज ए परमानेंट, और जो प्रकृति है, प्रकृति इज ए नेचुरल विच इज इटर्नल। इन्होंने नेचर को भी इटर्नल बोल दिया है, ठीक हो गया। पुरुष इज ए कॉन्शियसनेस विच इज ए इटर्नल, मतलब इट मीन्स, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब
हमारे अंदर आत्मा है, तो ये जो बॉडी है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑब्जेक्ट चेंजेस, सेल्फ डजंट चेंज। ओके, मतलब जो पिछले जन्म में हमारी आत्मा थी, उस आत्मा ने इस जन्म में एक नया ये, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक बॉडी ले ली है, चाहे मैन की वुमेन की। ठीक है, सेल्फ हमारी वही है, सेल्फ हमेशा प्योर है, सेल्फ हमेशा इटर्नल है। ओके, तो पुरुष में आपको ये याद रखना है। और प्रकृति जो है सारे नेचर की बात करते हैं, ये प्रकृति है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ए सांख्या फिलोसफी, एन एक्शन इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन ए कॉज। ठीक है, यहां पे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ। सांख्या एक्सेप्ट द प्रकृति द मैटर, पुरुष द स्पिरिट। ये देखो, प्रकृति को इन्होंने मैटर बोला है ना। मैटर नेचुरलिज्म में हमने किया था। नेचुरलिज्म टॉक्स अबाउट, मतलब नेचुरलिज्म कहते हैं, द फाउंडर ऑफ ए नेचुरलिज्म इज ए जीन जैकस रूसो। और नेचुरलिज्म कहता है कि भाई वी ऑल हैव कम थ्रू ए मैटर। नेचुरलिज्म मैटर की बात करता है ना, आइडियलिज्म आइडिया की बात करते हैं। ओके, और जो प्रेगमेटिज्म है, इट टॉक्स अबाउट द एक्शन फिलोसफी। वो कहता है कि रियलिटी लाइज इन द एक्शन। आइडियलिज्म कहता है रियलिटी लाइज इन द आइडियाज माइंड। ओके, नेचुरलिज्म कहता है कि रियलिटी लाइज इन द नेचर, मतलब मैटर। तो ये प्रकृति, ये मैटर, ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है ना, आर यू गेटिंग ना? तो ये सारा मिक्स है आपस में। ओके, तो सांख्य एक्सेप्ट द प्रकृति द मैटर, पुरुष द स्पिरिट एज द फंडामेंटल एलिमेंट। तो सांख्या इज ए ड्यूलिस्टिक फिलोसफी। ओके, थोड़ा और आगे आ जाओ। ये देखो, ये चार्ट अगर लर्न करना है तो लर्न कर लेना। ठीक है, अगर कर सकते हो, बना के आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। ठीक है ना। ये कहते हैं पुरुष कॉन्शियसनेस, उससे क्या हो गया, प्रकृति आई, फिर क्या है, महत बुद्धि आई, अहंकार आया, अहंकार के अंदर। ठीक है, ये वाला कर लो, ये दोनों एक ही हैं सारे। ठीक है, ये देखो, पुरुष से प्रकृति अनमेनिफेस्ट थी, फिर उसके बाद महत का साथ लिया, अहंकार अहंकार का साथ लिया। राइट, अब ये देखो, अब हमारे अंदर ही, मतलब ये सांख्या फिलोसफी कहती है ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। राइट, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है सारी चीजें। राइट, पुरुष भी है, नेचर भी सारा है, महत भी है, बुद्धि भी है, इंटेलेक्ट भी है, अहंकार भी है। अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद इनको बैलेंस कौन कर रहा है? वो कहते हैं तीन गुण भी हमारे अंदर ही है। कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ओके, वो देखो, सत्व, सतोगुण मतलब सत्व, रजस और तमो। अब ये कहते हैं ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं, और इनको हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हु इज कंट्रोलिंग? रजोगुण। ये देखो, रजस, रजस ने बैलेंस किया हुआ है। अगर हमारे अंदर तमोगुण आ गया तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शंस होगा, डिस्ट्रक्शंस। अब वो देखो, फाइट्स हो रही है ना कंट्री की, है ना। कौन कौन सी? वो यूक्रेन और वो रशिया। यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, है ना, उसके अंदर वो तमोगुण आया पड़ा है। और वो जो उधर है, रशिया का प्रेसिडेंट, वो पुतिन, वो तो अपने आप को ही बहुत समझता है, भाई मैं ही मैं हूं, है ना, कि मैं तो छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, इसको मैं खत्म कर दूंगा। अभी तक खत्म नहीं हुई है, 5 साल हो गए हैं। तमो तमो हावी होगी उनके अंदर। तो जब तमो हावी हमारी बॉडी में भी हो जाए तो हम भी ऐसी काम करते हैं। राइट, तो तमो, ये सातों, तो इनमें बैलेंस कौन बनाता है? बैलेंस इनके अंदर रजोगुण बनाता है। ठीक है, तो ये मैं तभी आपको कह रहा था कि अगर आपने करना है तो इसको याद कर लेना। ठीक है ना, तो अदरवाइज क्या नाम, ओके, इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए सांख्या। तो अभी हमने कर ही लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना। क्या है? सांख्या इज ए ड्यूलिस्टिक फिलोसफी। सांख्या टॉक अबाउट प्रकृति एंड पुरुष। ह्यूमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रकृति एंड पुरुष। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज साल्वेशन। राइट, अब वो मेजर 3 फैक्ट्स आ गए, है ना। मेटाफिजिक्स, एपिस्टियोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मतलब मेटाफिजिक्स कैसे है? मेटाफिजिक्स क्या है? किसकी? सांख्या की। एपिस्टियोमोलॉजी कहां से आई? मतलब किसकी? सांख्या की। एक्सियोलॉजी कहां से आई? सांख्या की। ठीक है, सांख्या फिलोसफी की। तो ये तीनों चीजें हर एक में आपने बतानी है। तो ये देखो, मेटाफिजिक्स की बात करती हैं, मेटाफिजिकल सांख्या फिलोसफी। इसको एम भी कई बार लगता है, एन भी लगता है। ठीक है, एम से लिख दिया करो। ठीक है, मेटाफिजिकल सांख्या फिलोसफी इज रिगार्डेड एज अ ड्यूलिस्टिक रियलिज्म। इट बिलीव्स टू अल्टीमेट रियलिटी प्रकृति एंड पुरुष, है ना। ये आपको बता ही दिया, दोबारा से ये हो रहा है प्रकृति। हाँ, ये कर लो, ये सेकंड पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको, थोड़ा सा कर लेते हैं हम, क्योंकि आपके नोट्स में होगा ना, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। राइट, द सांख्या रिप्लाइज दैट, ये देखो, प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अवर माइंड, बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स।
हमारी बॉडी के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रकृति के कारण आई हैं। द वर्ल्डली क्रिएशन इज बीइंग एक्सप्रेस थ्रू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट आर द टू inseparable components stand for all sorts of creations in the cosmos. Hence, all the objects of the world are bounded in the chain of a cause-effect relations. This relation Sankhya named as a Satkarvidya as populated as theory of a causation. ठीक हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जितने भी हमारी बॉडी के सेंसेस हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है, हमारा ये सब चीजें किसने पैदा की? प्रकृति ने पैदा की। ओके, तो ये देखो, अब इससे पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट में बनाया, पॉइंट से समझना आपको आसान हो जाएगा। राइट, आपके नोट्स के अंदर भी है मेटाफिजिक्स, ये देखो यहां से और आसान हो जाएगा आपके लिए। मेटाफिजिक्स थ्योरी ऑफ रियलिटी क्या है? सांख्या फिलोसफी की। प्रकृति, प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज विच इज इटर्नल इनटू विच द होल वर्ल्ड इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, गुनाज ऑफ प्रकृति, द गुनाज आर द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्रकृति। प्रकृति इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सतो रजो एंड तमो। मतलब ये सारी सृष्टि को, सारे कॉस्मोस को, ठीक है ना, किसने बनाया है? प्रकृति और पुरुष ने बनाया है, संख्या बोलती है, कपिल मुनि बोलते हैं। और जो प्रकृति का इसके अंदर क्या रोल है? प्रकृति ने हमारी बुद्धि, अहंकार, ये इन सब चीजों को पैदा किया है, तीनों गुणों को पैदा किया है। राइट, फिर आ जाओ पुरुष। पुरुष और सेल्फ इज द इटर्नल रियलिटी। पुरुष क्या चीज है? सेल्फ है, आत्मा। ठीक है, कपिल ऋषि बोल रही है, सांख्या फिलोसफी बोल रही है कि भाई सेल्फ भी हमारे अंदर है। और पुरुष जो है, सेल्फ जो है, आत्मा जो है, वो क्या है? इट इज नीदर द बॉडी नॉर द माइंड। बॉडी माइंड नहीं है, क्योंकि बॉडी माइंड किसने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए हैं, वो डिफरेंट है। अब उसके बाद नीदर ईगो नॉर इंटेलेक्ट, ना ईगो ना इंटेलेक्ट भी है। मतलब सेल्फ हमारी इन सभी से पड़ी है। हमने सुना है ना कि हमारी जो आत्मा होती है, ये 16 सूरजों के जितना प्रकाश होता है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसने बॉडी का साथ लिया हुआ है, इसने अहंकार का साथ लिया है, ईगो का साथ लिया है। तो इसकी लाइट इतनी कम हो गई है, ये अपने आप को नहीं पहचान रही है। मतलब जब भी आपने देखा होगा, हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम कोई काम करते हैं, है ना, तो मन तो कहता है फटाफट काम कर लो भाई, प्रॉफिट आ रहा है जी। फिर वो हमें, हमारी वो कॉन्शियस, हमें वो आत्मा कहती है नहीं, कहीं ये गलत काम तो नहीं है ना, क्योंकि वो हमारी आत्मा इन सभी के कारण वो दब चुकी है। राइट, तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। पुरुष जो है, यानी कि जो हमारी स्पिरिट है, पुरुष और सेल्फ इज एन इटर्नल रियलिटी। पुरुष इज नीदर द बॉडी नॉर द माइंड, नीदर ईगो नॉर इंटेलेक्ट। इट इज फ्री फ्रॉम द डिस्टॉर्शन इट ऑब्जेक्ट्स, इट्स ऑब्जेक्ट चेंजेस। मतलब बॉडी चेंज होती है, बट इट इटसेल्फ नेवर चेंजेस, कभी चेंज नहीं होती है आत्मा हमारी। मतलब हम बॉडी के कारण, माइंड के कारण हम मोह पाले बैठे हैं, प्यार पाले बैठे हैं। राइट, हम अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, इनको ही परमानेंट समझते हैं। अगर हमें पिछले जन्मों के अपने माँ बाप, रिश्तेदार, यार दोस्त याद नहीं है, तो इसकी क्या गारंटी है 100 साल बाद, 150 साल बाद हमें ये करंट माता पिता ये सब याद रह जाएंगे? ठीक है ना। तो हमारी आत्मा चलती आ रही है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ओके, तो इट नेवर चेंजेस, इट ऑब्जेक्ट चेंजेस। मतलब जिसके अंदर ये बैठी है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, आत्मा कभी नहीं चेंज होती। इट इज ए अबव सेल्फ एरोगेंस, अवर्शन एंड अटैचमेंट। मतलब मोह माया से पड़े है ये। ठीक है, ये मोह माया जितनी भी है, मतलब इसके साथ बॉडी जुड़ गई, इसके साथ तीनों गुण जुड़ गए, 25 प्रकृतियां जुड़ गई, अहंकार जुड़ गया, ईगो जुड़ गई, वो सारे हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन सूक्ष्म में है। ठीक है ना, डॉक्टरों को नहीं नजर आएंगे। राइट, वो सारे जुड़ने के बाद क्या हो गया? ये पूरा का पूरा इंसान बना, कॉस्मोस बना, क्रिएशंस हुई, सेट बाय द कपिल मुनि। ठीक है बच्चे, ये अब आपकी संख्या अच्छे से हो गई है। राइट, एपिस्टेमोलॉजी, एक दो पार्ट रह गए हैं। मतलब नॉलेज कहां से आती है? सांख्या फिलोसफी सेज दैट वी गेट द नॉलेज फ्रॉम, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी, हमारे अंदर से आती है। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी मतलब ये एक पैराग्राफ को मैंने ये देखो बड़ा किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। सांख्या, ये देखो सेकंड वाला ही, नीचे वाला ही, सांख्या बिलीव्स दैट आवर बॉडी, our mind and our soul generated from the combination of a पुरुष and प्रकृति। ठीक है, and ultimate liberation is possible after attainment of the right knowledge about पुरुष and प्रकृति।
so that one can differentiate the existence of a पुरुष and प्रकृति। अब इस भेद को किसने खोला? कपिल कपिल ऋषि ने खोला। देखो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आप किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ के देख लो कि कोई भी स्क्रिप्चर हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, गीता हो, राइट, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, ये क्या बोलते हैं सारे? अल्टीमेट उसकी बात करती है ना जी, हमें रियलिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने पुरुष और प्रकृति का कॉम्बिनेशंस को अगर डिफरेंशिएट करना है तो तभी आपको आपके एग्जिस्टेंस का पता लग सकता है, राइट। तो हमारा अल्टीमेट क्या है ऑब्जेक्ट? हमारा अल्टीमेट लिबरेशन, लिबरेशन है, मुक्ति है, साल्वेशन है, राइट। ये एक्सियोलॉजी में आपने लिखना है। आपकी सांख्य फिलॉसफी हो गई है, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं उसी क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखो, व्हाट इज ए सांख्या? डिस्क्राइब्स एजुकेशनल एप्लीकेशंस इन डिटेल। वो तीनों चीजें तो हमारी हो गई, वो तीनों चीजें मेजर फैक्ट्स था। एजुकेशनल इन डिटेल यहां से कर लेते हैं तो पूरा फिलॉसफी हो जाएगा, पूरा सांख्य फिलॉसफी हो जाएगा। ये देखो मेटाफिजिक्स अभी हमने की है, ठीक है। ये सारी मेटाफिजिक्स के बाद हमने एपिस्टेमोलॉजी भी कर ली, ये एक्सियोलॉजी भी कर ली। अब हम एजुकेशनल इंप्लीकेशंस कर लेते हैं ऑफ सांख्य फिलॉसफी। मतलब वो दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। मतलब इसमें तो क्वेश्चन यही आ गया कि भाई अगर आपको एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी आ जाए तब भी आप तीनों चीजें डिफाइन करो थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, अगर वो तीनों ही चीजें आ जाती हैं, थ्योरी ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, उसके साथ फिर भी हल्का फुल्का आपने ये डिफाइन कर दिया इसका एजुकेशनल फिलॉसफी, ठीक है। तो अब आप देख लो कि हमने सांख्या पढ़ लिया। तो सांख्या बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रकृति एंड पुरुष। सांख्या टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन लिबरेट, है ना, बाय नोइंग दीज थिंग्स, ठीक है। सांख्या टॉक्स अबाउट वी गेट द नॉलेज फ्रॉम द परसेप्शन फ्रॉम द स्क्रिप्चुरल टेस्टिमनी, है ना। तो ये सारी चीजें पता लगी। तो अब ये एजुकेशन भी तो ऐसे ही होनी चाहिए ना, सांख्या फिलॉसफी यही बोलेगी, है ना। आपको क्लैरिटी होगी ना। तो कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपके बन गए हैं, क्यों? क्योंकि आपको सांख्या फिलॉसफी पता लग गई है। तो देखो वही पॉइंट होंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है सांख्या फिलॉसफी के? ये देखो सांख्या फिलॉसफी, ये नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखिए, ये देखो, सांख्या स्टेट्स दैट अल्टीमेट एम एट अटेनिंग द परफेक्शन ऑफ ए पुरुष थ्रू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू इट्स सैल्वेशन। दस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी क्रिएट ये वर्ड गलत लिख दिया शायद, डिस्कर्निंग इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ अटेनिंग द परफेक्शन दैट एग्जिस्ट विद इन देम, एज स्वामी विवेकानंद आल्सो पुट इट। मतलब हमें अपने अंदर से ही उन चीजों को ढूंढना है। इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। करिकुलम के अंदर सिलेबस कैसा होना चाहिए? द करिकुलम विल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स with stress on the natural sciences, since to understand prakriti and to discriminate between purush and prakriti, and the arts so as to develop an appreciation of understanding of the works of authorities। इन्होंने दोनों को बोल दिया है ना। आप ये देखें कि भाई आर्ट्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, साथ साथ नेचुरल साइंसेस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी इसका भेद आपको पता लग सकता है। और फिजिकल साइंसेस एंड द योगा विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ करिकुलम, since Sankhya believes only a healthy and focused individual can attain salvations। और मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होनी चाहिए? ये सारा लिख दिया। मेथड ऑफ टीचिंग इन्होंने बोला एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। और अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन, ये देखो लिबरेशन, हाँ, एजुकेशन ऐसी हो जो लिबरेशन की तरफ लेके जाए, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज की तरफ लेके जाए, डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एनलाइटमेंट ऑफ ए सेल्फ, और लास्ट में आपने कंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की सांख्या फिलोसफी बहुत ही बढ़िया वे में होगी है। नोट्स के थ्रू भी करवा दी, पीपीटी के थ्रू भी करवा दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेदांत की, ठीक है। इसको भी कर लो बड़ी जल्दी से, ठीक है, इजी है। नोट्स के थ्रू ही करवा रहा हूं ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, वहां से देखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस द नेचर ऑफ ए रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द वेदांत स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब देखो इसने क्या पूछा, मतलब जो वैल्यूज, है ना, एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, राइट। अब आप सिलेबस को देखो तो देखो वही चीजें हैं, इसने वो पूछ ली हैं। देखो इसने नेचर ऑफ रियलिटी का पूछा, तो आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए कि यहां पे मुझे मेटाफिजिक्स बतानी है वेदांत की। ओके बच्चे, अब ये देखो नॉलेज पूछ लिया, तो मुझे आई हैव टू टॉक अबाउट एपिस्टियोमोलॉजी, इट इज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज आल्सो, तो आई 100% आई हैव टू टॉक अबाउट एक्सियोलॉजी। उसके बाद
गोल्स ऑफ एजुकेशनल मतलब इसने एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी पूछ लिया, तो मुझे सारा डिफाइन करना है क्या क्या, वही तीन चीजें और उनके अंदर भी तीन तीन चीजें। तो मुझे सबसे पहले वेदांत फिलॉसफी के बारे में बताना है, फिर मुझे मेजर फैक्ट्स बताने हैं। मेजर फैक्ट्स के अंदर तीन चीजें आ गई, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। फिर तीसरे नंबर के ऊपर मुझे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस बतानी है, उसके अंदर भी तीन चीजें आ गई, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है ना? बस इस पैटर्न को समझ लो, आपको इजी लगेगा सारा ही। ठीक है, तो वेदांत समझते हैं क्या चीज है। ठीक है बच्चे, अब याद रखना वो सांख्य फिलॉसफी अपना अलग था, प्रकृति पुरुष की बातें की थी, वो इसमें नहीं होगा। आइडियलिज्म ने आइडियाज की बात की थी, वो इसमें नहीं होगा। नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, वो नहीं होगा। हर एक ने अपना अपना मत दिया है, अपनी अपनी ओपिनियन दी है। बीइंग टीचर हमें सारों की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। हमारा स्कूल देखो कहां से स्टार्ट होता है स्कूल हमारा। व्हेन वी स्टार्ट अवर स्कूल, वी स्टार्ट विद द प्रेयर, वी आर यूजिंग द आइडलिज्म, राइट? In every class, in every class we also have experience, you all of you know, in a year there is a tour and trip, जाते हैं ना हम टूर्स एंड ट्रिप के ऊपर। वी आर आल्सो यूजिंग द नेचुरलिज्म, राइट? फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स के अंदर, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। अरे कहां से आई? नेचुरलिज्म के कारण आई। ये नेचुरलिज्म की देन है। हमारा किंडरगार्टन सिस्टम है, एलकेजी है, एमकेजी है, यूकेजी है। डू यू नो किसने दिया? फ्रॉबिल ने। फ्रॉबिल कौन था? फ्रॉबिल नेचुरलिस्ट था, राइट? नेचुरलिस्ट फ्रॉबिल गेव द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। उसके बाद शुरू में हम साइंस के सब्जेक्ट्स हैं हमारे, है ना? हमने देखा होगा साइंस, मैथ्स, ये सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं कि रिसेस के बाद, आफ्टर द ब्रेक, है ना, बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं लो। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया, प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, तो ये सारी ही फिलोसफीज हम यूज करते हैं, तब जाकर इन स्कूलों का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो एक टीचर को ये चीजें आनी चाहिए, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। ये नहीं सिर्फ किताब की नॉलेज आए, कंटेंट मैटर आए। आर यू गेटिंग? और इसी को पेडागोजी बोलते हैं, इसी को टीचिंग बोलते हैं। क्योंकि इन सब फिलॉसफी को समझ के यू बिकम अ फिलोसोफर, साइकोलॉजी को समझ के यू बिकम ए गुड साइकोलॉजिस्ट, राइट? कंटेंट नॉलेज तो कुछ भी नहीं है जिसको आप कहते फिरते हो कि मुझे बहुत, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा है। तो हो सकता है अच्छा हो, पर यू आर नॉट गुड टीचर। आप कैसे बनोगे गुड टीचर? आप ऐसे बनोगे गुड टीचर इफ यू हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ फिलोसफी, if you have a sound knowledge of a educational psychology, if you have a sound knowledge of a teaching learning process, and you should be learner first before becoming a teacher. Every day you have to learn it. ओके, तो ये सब चीजें होती हैं, है ना? आई थिंक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीनिंग ऑफ वेदांत, वेदांता या वेदांत कुछ भी कह लीजिए, ठीक है? इस वेदांत, इसकी बात हम करते हैं, लिखने में ए आ जाता है। वेदांत इज ए स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये भी ओल्डर स्कूल ऑफ ए फिलोसफी है। वेदांत इज ए ओल्डर स्कूल ऑफ ए फिलोसफी विच टेक्स इट्स टीचिंग फ्रॉम उपनिषेद, विच फॉर्म द फाइनल सेक्शन ऑफ द लिटरेचर ऑफ वेदा। ये वेदों से आई है, ये उपनिषेद से आई है, राइट? और आगे पढ़ते हैं, ये देखो, द कोर टीचिंग ऑफ वेदांत क्या कहते हैं? द कोर टीचिंग ऑफ वेदांत इज द एक्सपीरियंस वंस ट्रू नेचर, द इंडिविजुअल सोल एज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल और सुप्रीम सोल। अब ये वेदांत कहते हैं कि जो हमारी इंडिविजुअल सोल है, आत्मा है, सेल्फ है, वो एक पार्ट है किसकी? सुप्रीम सोल की। ठीक है, और वो सुप्रीम सोल कौन है? वो है ब्रह्मा। ये देखो आगे बताएंगे, द रोल ऑफ वेदांत इज टू प्रोवाइड द नॉलेज दैट कैन लीड टू फ्रीडम। आजो वेदांत एंड मेजर पोस्टुलेट्स, है ना, मेजर फैक्ट्स की बात करते हैं, सीधा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी की बात करेंगे और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, है ना? क्योंकि पता है हमें ये तीन चीजें लिखनी है हमने। तो ये देखो मेटाफिजिक्स कर लो, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका सारा, ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा आज ही आपका। वेदांत वेदांत स्पोक ऑफ वन रियलिटी, वेदांत टॉक्ड अबाउट वन रियलिटी, एकम रियलिटी, की एक ही रियलिटी है, which can be spoken in a various ways by the different sages and saints, right? Vedant spoke of that one ekam that created the world, वो एक ही रियलिटी है,
एक ही है जिसने, एकम ही है जिसने पूरे वर्ल्ड को पैदा किया है। द उपनिषद कॉल्ड इट ब्रह्मा। ये ब्रह्मा है, ब्राह्मण मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, ब्रह्मा, राइट। ये देखो मैंने बड़ा भी किया हुआ है। ब्रह्मा इज द रियलिटी ऑफ रियलिटी, इट इज ए कॉज ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग्स। ब्रह्मा इज ए क्रिएटर, ब्रह्मा इज ए प्रिजर्वर, ब्रह्मा इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, गेटिंग। तो जब वेदांत आएगा तो आपने ये लिखना है, सांख्य आएगा तो वो पुरुष प्रकृति की बात करनी है, आइडियलिज्म आएगा तो आइडियाज की बात करनी है, प्रैग्मेटिज्म आएगा तो एक्शंस की बात करनी है, नेचुरलिज्म आएगा तो आपने नेचर की बात करनी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म आएगा तो आपने एग्जिस्टेंस की बात करनी है, सेल्फ की बात करनी है। ओके, नेचुरलिज्म कहता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से रियलिटी आई है। आइडियलिज्म कहता है आइडिया से रियलिटी आई है, राइट। सांख्या कहता है रियलिटी दो ड्यूलिस्टिक फिलोसफी है, राइट, पुरुष एंड प्रकृति। वेदांत कहता है रियलिटी एक है, एक ही से रियलिटी आई है, एक ही है वो जो क्रिएटर ऑफ क्रिएटर है, वही एक है जो क्रिएटर है, प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड है, वही एक है। और वो एक कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से आई है। और हमारी सोल क्या चीज है? उस ब्रह्मा की पार्ट है। हमारी सोल एक लिटिल पार्ट है, वो ब्रह्मा की सोल जो है एक पोटेंशियल पार्ट है, हम उसकी पार्ट है। अक्सर सुना होगा आपने ना, हम कहते हैं ना कि वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड, है ना। तो वेदांत वाले गॉड ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। तो हर तरह के लोग रहते हैं, इंडिया की यही तो खूबसूरती है। आप ये देखिए क्या खूबसूरती है इंडिया की, दूसरे देश देख लो, राइट। तो आजो जी, द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज टू रियलाइज दिस अल्टीमेट रियलिटी, और ब्रह्मा, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमने इस अल्टीमेट रियलिटी को हमने रियलाइज करना है। सोल एंड ब्रह्मा आर वन एंड द सेम। क्या बात है जी, देखो, सोल एंड ब्रह्मा आर वन एंड द सेम। देखो बड़ी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं, ये लाइनें नोट कर लो। ये जब लाइनें आप लिखते हो ना, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लोगे तो यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। और बच्चे ये देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट बना रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप अच्छी टीचर बन जाते हो। कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगा आपका वो कॉन्सेप्ट, बट द थिंग इज दैट कि आपको यू हैव टू लर्न इट, राइट। आपको उसको लर्न करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। किसी ने लिखा है रिवीजन इज द ग्रैंड मदर ऑफ लर्निंग, रिवीजन इज द ग्रैंड मदर ऑफ लर्निंग। आप सोचो, जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ रहे थे, कितनी नॉलेज थी, है ना। जैसे ही आप थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्ट हुए, राइट, आप वो देख लो दूसरी चीजों ने आपका वो दिमाग का पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो यू नो, कम बैक। सोल एंड ब्रह्मा आर द वन एंड द सेम, हेंस हिज थियरी इज नोन एज मोनिज्म। मतलब सेल्फ वन, है ना, वन बोल देते हैं। वो थी ड्यूलिस्टिक थी, ये वो है, राइट। और ये पार्ट है मोनिज्म, मतलब सिंगल है, राइट। ब्रह्मा, ब्रह्मा की बात करते हैं। ओके, एपिस्टेमोलॉजी आ जाओ, थ्योरी कहां कहां से आई है, सॉरी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहां से आई है। तो ये वेदांत वाले बोलते हैं कि जो नॉलेज है, वी गेट द नॉलेज फ्रॉम द अपार एंड पार। देखो ये वो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना आपका, जो यूनिट वन में आपका नॉलेज का है, तो इसमें से ये दोनों पार्ट आ रही हैं, राइट। सोर्सेज ऑफ नॉलेज या टाइप्स ऑफ नॉलेज। ओके, अपार एंड पार। अपारा का मतलब है टेम्पोरल और प्रैक्टिकल, द नॉलेज ऑफ ए डिफरेंट फेसेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। पार होगा स्पिरिचुअल, वेद, ब्रह्मा एंड दिस, यहां से हम नॉलेज लेते हैं, अपार से भी और अपार से भी, मतलब स्पिरिचुअल भी और टेम्पोरल भी। एक्सियोलॉजी कैसी है? वेदांत कहते हैं, तो वेदांत कहते हैं विद्या लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा कैन बी रियलाइज्ड बाय वन हु डज प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, डिजायरलेसनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। ये वर्ड आपने, ये चीजें लिखनी है अंडर द वेदांत फिलोसफी, ठीक है। ओके, तो ये आपका, अब आ जाओ हमारा वेदांत एंड एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, जिसमें हमें एम्स ऑफ एजुकेशन करना है, करिकुलम करना है, मेथड ऑफ टीचिंग करनी है, ठीक है। तो एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द वेदांत, है ना, हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो ये हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये देखो, एजुकेशन मस्ट एम एट सेल्फ फुलफिलमेंट एंड प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स एंड अटैचमेंट। एजुकेशन ऑफ द माइंड, education must provide knowledge for creativity and pursuit of culture and civilization.
मेक लिविंग वर्दी, रिलीजियस सेंटर्ड, राइट, इंडिविजुअल सेंटर्ड, नेचर ओरिएंटेड, राइट। ये एक दो पार्ट, ये अगर इसमें याद ऐसे करने हैं तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अदरवाइज आप फ्लो में भी लिख सकते हैं। तो ये कहते हैं प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ाई जानी चाहिए। द चाइल्ड वाज मेड टू प्रोनाउंस वैदिक मंत्र, नॉलेज ऑफ संदेश, कनेक्टिव रूल्स, एलिमेंट्री ग्रामर, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन चिल्ड्रन वर सेंट टू गुरुकुल। ठीक है, इन्होंने प्राइमरी बोला कि पहले उसको मंत्र का उच्चारण करना ये बचपन में उसको सिखाया जाना चाहिए बच्चे को। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 8 10 साल 12 साल का होता है, तो ही वॉज सेंट टू द गुरुकुल। और गुरुकुल में वहीं पे 15 20 साल वो गुरु के पास रहता है। ये देखो हमारा इतना स्ट्रांग था पहले गुरुकुल सिस्टम। ये तो इन्होंने इन्होंने जब जैसी वार वूर हुई है ना, उसके कारण इन्होंने सारा खत्म कर दिया। तो हायर एजुकेशन के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये देखो, एंट्री एज वेरिड बिटवीन 8 to 12, है ना, 8 to 12 में प्राइमरी एजुकेशन होगी फॉर डिफरेंट वर्ड्स एंड कंप्लीटेड बाय एट द एज ऑफ 25th व्हेन उपायनाम ceremony was formed to enable the child to enter into the studentship. The ultimate aim of education is to prepare a child to realizations of Brahma. ओके, तो ये सारा का सारा है, आपने ये पढ़ लेना, मतलब कंसेप्ट एक्चुअली आपको पता लग गया। करिकुलम, सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस में ये देखो ये सारा बताया कि सिलेबस के अंदर ये सारे वेद हो, उपनिषेद हो, पुराण हो, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अपार विद्या, ठीक है, जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी, ये देखो हिस्ट्री, आयुर्वेदिक, इकोनॉमिक। देखो ऐसा नहीं है कि भाई आजकल की डेट में हम जो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये ओल्डेस्ट फिलोसफी नहीं कहा, ओल्डेस्ट फिलोसफी में भी था कि वही पढ़ना है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी देखो इन्होंने कहा कि ये पढ़ना है। आज की डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए तो कोई रह ही नहीं गया, सुनो मेरी बात, ऐसा कोई पार्ट या कुछ, है ना। बच्चों को रॉबोट बना रहे हैं, मैथमेटिक्स को ये करो जी, ये चीजें करो जी, आप मुझे ये बताओ, ठीक है ना। इन तो हमें ये देखो इन सारों की नॉलेज हमें होनी चाहिए बीइंग टीचर, तभी हम बता पाएंगे ना एक अच्छा करिकुलम कैसे बनता है, एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, ठीक है जी। फिर आ गया मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड में वो कहते हैं ओरल मेथड भी ठीक है, चिंतन ये मेथड होना चाहिए, थिंकिंग और रिफ्लेक्शंस वाला मेथड, राइट। और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस के अंदर प्राइड इन द सिविलाइजेशन एंड नेचर, डिसिप्लिन एंड पीपल टीचर रिलेशनशिप, सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, टीचिंग मेथड्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, कमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये सारा का सारा आपका आ गया एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अभी हमने वेदांत के अंदर वेदांतिक फिलोसफी भी कर ली, ठीक है, वो अल्टीमेट बात करते हैं, एक की बात करते हैं अल्टीमेट, ठीक है, एक ही है जो है क्रिएटर है, प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर है, राइट। वो, और वो कौन है, वो ब्रह्मा है। और हमारी जो आत्मा है इट इज ए पार्ट ऑफ द ब्रह्मा, राइट। और उसके बाद फिर हमने मेटाफिजिक्स भी कर ली, एपिस्टेमोलॉजी भी, एक्सियोलॉजी भी कर ली, ठीक है। फिर हमने एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी कर ली हैं इनके। तो ये देखो पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन आया था वेदांत के ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अभी रुकना अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको ना पिछले थोड़े से पेपर भी दिखाता हूं अभी, ठीक है। हम 15 20 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ये देखो पहले मैं आपको पेपर्स ही दिखा दूं लास्ट ईयर के, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ना, थोड़ा सा आपका और आपका मतलब इंटरेस्ट और थोड़ा बेटर क्रिएट हो जाएगा इसमें। ये देखो ये ना, ये मैं 2 3 पेपर है आज ही आपको डाल देता हूँ, ठीक है। ये 2 3 पेपर भी आप कर जो, ऑलमोस्ट सेम ही है पेपर, सेम चीजें आई हुई हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें ये देखो आया हुआ है कंसेप्ट ऑफ, ये देखो पेपर 1 है आपका ना, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये देखो आया हुआ है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, है ना, वो भी हमने किया, पता लगी गया। वैल्यूज एज परसीव्ड बाय वेदांत, वेदांत भी हमने किया, उनकी क्या वैल्यूज है आप बता देना, शॉर्ट क्वेश्चंस है। एम्स ऑफ एजुकेशन पर नेचुरलिज्म, है ना, शुरू में हमने किया था नेचुरलिज्म का, याद करो, एक मैंने पहले भी लिया था आपका फुल फ्लेज लेक्चर। मीनिंग ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, इसको भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़े क्वेश्चंस देखो आगे। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, आ गया ना। तो इसमें वो रोज की एग्जांपल, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड विद देम, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द अदर, आल्सो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फिलोसफी। और थर्ड देखो आ गया, डिस्कस द कंसेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ नॉलेज, आल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो आपको बोला पहले आपको करना है, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका। सेकंड में ये देखो बुद्धिज्म आ गया आपको, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड अलोंग विद एजुकेशनल इंप्लीकेशन, बुद्धिज्म भी अभी हम कर लेंगे फटाफट।
ठीक है। बुद्धिज्म में वो बस 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ की बात है। ओके, अदरवाइज आप नोट्स में से भी कर सकते हो। ठीक है। पांचवा देखो सांख्या फिलोसफी आ गया, जो आज हमने डिटेल में किया है, along with its educational implications। ठीक है। यूनिट थर्ड के अंदर वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी आएगा। वो देखो प्रेगमेटिज्म आ गया, उसकी रियलिटी आ गई, नॉलेज आ गया, वैल्यूज आ गया और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस आ गया प्रेगमेटिज्म के। करेक्ट। रियलिज्म के भी वो देखो आ गया। और फोर्थ में गांधी जी आ गया। ठीक है, ये एक पेपर है। ये सारे पेपर मैं आपको दे देता हूँ, 2-3 पेपर्स हैं। ठीक है। और ये फिर 1-2 साल पहले पेपर आया हुआ है ये। ठीक है। इसके अंदर देखो क्या आया हुआ है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी आ गया, है ना। ये देखो शॉर्ट में 4 नोबल ट्रूथ आ गया अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ अरबिंदो आ गया। मेन फीचर ऑफ रियलिज्म आ गया। ठीक है। और बड़े क्वेश्चंस के अंदर वही देखो एजुकेशनल फिलोसफी का ही आ गया। मैंने कहा ना वो सेम ही एक्चुअली, ये 3-4 क्वेश्चन ही, क्वेश्चन पेपर एक ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 या 1.5 होगा बस। अदरवाइज वो देखो वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखो नेचर वाला वही सेम क्वेश्चन डाल दिया उसने। ये सांख्या फिलोसफी का भी सेम आ गया, देखो यूनिट 2 में ही आया था सांख्या फिलोसफी भी। और ये वेदांत भी आया था, देखो वेदांत ही आया था। और है ही नहीं है ना, वो एग्जामिनर क्या करेगा, वही तो डालेगा। यूनिट 3 के अंदर वो देखो पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या आया था, प्रेगमेटिज्म आया था। इसमें अब नेचुरलिज्म आ गया। ये देखो प्रेगमेटिज्म फिर आ गया, है ना। आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रेगमेटिज्म इंपॉर्टेंट है। आइडियलिज्म इजी है इसलिए वो नहीं आता होता, कम ही आता होता आइडियलिज्म। ठीक है ना। प्रेगमेटिज्म इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कई बार आ जाता है, रियलिज्म आ जाता है। ये देखो गांधी जी आया हुआ था यूनिट 4 में, है ना, पीछे हमने देखा। और इसमें लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, ये मैं समझा देता हूं आपको, इजी है। लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म भी इसको बोलते हैं। ये न्यू फिलोसफी थी, 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखो व्हाट इज लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजेक्ट कर दी सारी मेटाफिजिकल थियोरीज। ओके। ये कहते हैं कि वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द डायरेक्ट सेंसेस विद आवर 5 सेंसेस। ठीक है जी। तो आप पेपर देख लो ना, 2 पेपर हो गए। एक और पेपर पड़ा हुआ है पीछे से, पिछले साल का। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ये मेरे ख्याल से वही है ना। ये वही है। और ये लास्ट वाला एक रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन है तो वही है। आप ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन, शॉर्ट में एजुकेशन एंड फिलोसफी आ गया, है ना। वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सांख्या आ गया, सांख्या फिलोसफी। नेचर ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म आ गया। नेचर ऑफ नॉलेज मतलब यहां पे आपको क्या बात करनी है, एपिस्टियोमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। अगर यहां पे आ जाता थ्योरी ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, इट मींस यहां पे आपको बात करनी है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। एजुकेशन थॉट ऑफ टैगोर जी आ गया। ठीक है ना। यूनिट 1 में देखो, ये देखो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी आल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, बार बार आ रहा है, हमेशा ही वही आ रहा है। और नॉलेज वाला फिर आ गया। देखो ये चारों सालों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तीनों चारों साल में। और ये देखो सेकंड में बुद्धिज्म आ गया, राइट, और वेदांत आ गया, है ना। तो पहले क्या आया था, सांख्य और वेदांत आया था। वेदांत तो रिपीट हो ही रहा है, आप देख लो। तभी मैंने आपको बोला बुद्धिज्म और वेदांत कर लो, है ना। ये रिपीट ऑलवेज हो ही रही है। आइडियलिज्म भी आ गया इस बार तो। ठीक है जी, इजी आ गया, राइट। ओके। और कंसेप्ट फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया। देखो आइडियलिज्म के साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया। और यहां पर आ गया आपका विवेकानंद आ गया और लॉजिकल एनालिसिस आ गया। ठीक है बच्चे। चलो ये सारे ही मैंने आपको दिए हुए, ये देखो नेचुरलिज्म भी दिया हुआ है आपका। ठीक है ना। उसके बाद हमने आपका, ये मैं 9th वाला एक क्वेश्चन रह गया था, ये कौन सा है, प्रैग्मेटिज्म भी देखो पूरा हम ना डिस्कस हो भी गया था हमारा, ये दिया भी हो आपका 7th। ठीक है, एक सॉल्व है पेपर सारा, लास्ट टाइम हमने ये कर लिया था। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए गांधी जी, है ना, ये भी वही है, मैंने आपको बताया आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब समझाने वाला नहीं है, सिंपल ही है ये तो। ओके। और हाँ, ये कर लेते हैं हम एक 9th। ठीक है, फिर हम मतलब वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है। अब लॉजिकल एम्पिरिसिज्म क्या चीज है, ये 9th वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है अब आपका। ठीक है। यूनिट 1 भी हमने कर लिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज वाला। सेकंड के अंदर हमने वो जो है हमारे सांख्या फिलोसफी, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है। थर्ड में वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। और फोर्थ के अंदर हमारा 4 थिंकर्स है, और ये वाला पार्ट है लॉजिकल एम्पिरिसिज्म वाला। ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म क्या चीज है, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म को पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। ये कर लो, ये ऑलवेज आता होता है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है। ठीक है। लॉजिकल एम्पिरिसिज्म या पॉजिटिविज्म इज ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ experiences of directly or
फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। लॉजिकल इंपेरिसिज्म या पॉजिटिविज्म इज ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज आ रही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब वो हमारी 5 सेंसेस है, जो हमारी हमारी 5 सेंसेस के थ्रू जो भी हमारी नॉलेज रियलिटी बन रही है, लॉजिकल इंपेरिसिज्म कहता है ये एक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। और आगे लॉजिकल इंपेरिसिज्म या पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। बेसिकली ये लॉजिकल इंपेरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये एक फिलोसफिकल थॉट थी बच्चे, फिलोसफिकल मूवमेंट थी, जो 19th में इट स्टार्टेड अरोज इन द वियना। वियना एक अमेरिका का स्टेट है, वहां पे स्टार्ट हुई कुछ साइंटिस्टों के द्वारा और कुछ इंटेलेक्ट्स के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट हुई 19th में, एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द व्यू दैट साइंटिफिक नॉलेज इज द ओनली काइंड ऑफ ए फैक्चुअल नॉलेज एंड दैट ऑल द ट्रेडिशनल metaphysical doctrines are to be rejected as meaningless। तो अब ये नई फिलॉसफी लेके आ गए सारे अमेरिका वाले 19th के अंदर, वेस्टर्न वाले क्या लेके आ गए, इन सारों ने मिलके जो भी इंटेलेक्ट हो गए बड़े बड़े, है ना, तो डेवलपमेंट होती रहती है, आपको मालूम है, राइट, उनके अकॉर्डिंग इन नई फिलॉसफी इन्होंने बना ली। तो कहते हैं जितनी भी चीजें डेवलप हुई हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी जो रियलिटी है, उनकी जो सब कुछ है, दे वी गेट फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। और ये जितनी भी मेटाफिजिकल फिलोसफीज हैं, आइडियलिज्म, ये इनको रिजेक्ट कर दिया। आप ये देख लो अमेरिका में ये पढ़ाया जाता है क्या, बताओ। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन तो रही नहीं गई कहीं भी देशों में, हमारे इंडिया में तो है, देखा होगा ना आपने, राइट। तो इन्होंने फिर दिस थ्योरी ऑफ नॉलेज asserted that only statement verifiable through direct observations are meaningful। ये कहते जो साइंटिफिक नॉलेज होगी उसी को हमें मानना है, बाकी चीजों को नहीं मानना, right। Starting in the late 1920, group of a philosopher, scientist, mathematician formed the Berlin Circle and the Vienna Circle। ये सारे स्टेट है अमेरिका के, ठीक है, बर्लिन और वियना, विच इन दीज टू सिटीज, मतलब सिटी है सॉरी, ठीक है, वुड प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ ए लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो देखो इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया वो, है ना। अब हम भी क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ ही तो जा रहे हैं, हम अपनी मेन सभ्यता को भूली जा रहे हैं, इवन वो लोग अब दोबारा वापस इस तरफ आ रहे हैं। Logical positivism has emerged as a movement in the field of a philosophy and became very influential ideology due to its scientific temper। साइंटिफिक टेम्पर था ना, भाई नजर आ जाए हमें, दिख जाए हमें, वेरीफाइबल हो जाए, उसी को मानना है जी। अरे कई चीजें होती हैं सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली, राइट। अगर आप उस पे चलोगे तो वो भी आपको चीजों का पता लगेगा अंदर ही, वो रियल है बेसिकली, ये अनरियल चीजें हैं। इंपीरिकल नॉलेज इंक्लूड्स फिजिक्स, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, राइट। तो ये सारी की सारी वही बात करता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ ए लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ ए लॉजिकल पॉजिटिविज्म सजेस्ट दैट टू फॉर्म्स ऑफ ए नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंपीरिकल एक्सपीरियंस, राइट, वही है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मॉडर्न इंपीरिसिज्म रिजेक्ट्स प्रायर नॉलेज, दैट इज नॉलेज गेन विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। आर यू गेटिंग ना, ये जो हमारी 5 सेंसेस है, इससे हमें पूरा का पूरा फिनोमिनल वर्ल्ड है इसका पता लगता है, ओके। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है, लॉजिकल इंपीरिसिज्म कहता है कि वट एवर इज वी गेट थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस वही करेक्ट है। और आइडियलिज्म हो गया, है ना, ये सब चीजें, सांख्य फिलोसफी, वेदांत, ये सब चीजें बोलती हैं रियलिटी तो इन सेंसेस से पड़े हैं। वो सारी मेटाफिजिकल फिलोसफीज है ना, मेटाफिजिकल दो वर्ड है बेसिकली, मेटाफिजिकल, मेटा को अलग करो, फिजिकल को अलग करो। मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिकल मतलब दुनिया। तो मेटाफिजिकल बात करती है दुनिया से परे की, तो वो मेटाफिजिकल डजंट टॉक अबाउट ये 5 सेंसेस, ये तो फिनोमिना है, राइट, ओके। तो इस करके इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, उस फिलोसफीज को, राइट, जो 19th के अंदर आई हैं, मॉडर्न फिलोसफीज आई हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म आया है। ये कहते हैं कि वट एवर वी गेट थ्रू द 5 सेंसेस वही है जी करेक्ट, बस वही पढ़ाओ, उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, ठीक है। ये कोई कुछ नहीं होता, भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता,
राइट? किसी ने देखा तो है नहीं कहते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग consists of a mathematical concept that convert into logical statement, whereas empirical knowledge comprises physics, biology and psychology. अब देखो यही 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 पढ़ाया जा रहा है, यही बच्चे रॉबर्ट्स बन रहे हैं, आप ये देख लो। ठीक है ना, वैल्यूज ही भूल गए हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि यही फिलोसफी चल रही है, राइट? उनके अंदर ये चीजें है ही नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, दोबारा से फिर वो चीजें आएंगी, है ना, इंक्लूड होती हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, और ये दुनिया का सर्कल है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। ओके, यू गॉट द पॉइंट? ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी आपका हो गया बच्चे। अब इसकी मेटाफिजिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ रियलिटी क्या है लॉजिकल एम्पिरिसिज्म की, ये बोलते हैं, राइट? ये देखो, ये इसी को पढ़ लो आप। ये कहते हैं कि भाई ये जो सारा का सारा वर्ल्ड है ना, बेसिकली एटम से बना है, मोलिक्यूल से बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, जो नेचुरलिज्म ने बोला था। ओके, एटम, मोलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स यही है। और ये जितना भी ये सुपर सेंसिबल वर्ड होता है ना जो, ओके, वो जो होता है, मतलब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, राइट? मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं ना, कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है, जो अगर आपने आइडियलिज्म में पढ़ा था, आइडियलिज्म के एक है, उन्होंने लिखा था देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ड, वन इज ए नोमिना वर्ल्ड एंड वन इज ए फिनोमिना वर्ल्ड। तो दिस फिनोमिना वर्ल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द नोमिना वर्ल्ड, and if you want to experience the nomina world, experience by sitting on the meditation, by sitting, by reflection, right? Only then you can, experience that nomina world. तो ये कहते हैं नोमिना वर्ड ही नहीं कोई होता, सुपर सेंसिबल वर्ड, मतलब इस वर्ड से पढ़े कोई वर्ड है ही नहीं है। तो ये इनके एक हैं पर्सन, ए.जे. अय्यर हैं, ठीक है, इन्होंने ये बोला, और अदर लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट ने बोला, ठीक है। ए.जे. अय्यर गिव ए फिनोमिनलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, फिनोमिनलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यही वर्ड, यही वर्ड परमानेंट है बस, और कोई है ही नहीं। तो व्यू अबाउट द गॉड, तो गॉड वगैरह को तो मानते ही नहीं है। अय्यर एडवोकेटेड दैट गॉड इज इक्विवेलेंट टू द नेचर एंड फॉर्म, वन आर्ग्यू, ये मानते ही नहीं है, बस इसमें ये आपने बात लिखनी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात कर रही है। एथिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ये भी आप, मतलब मेन आइडिया आपको क्लियर हो गया। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, अब आ जाओ, अब इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा इन्होंने कंसेप्ट बताया, बेसिक हाइपोथेसिस, प्रोसीजर, है ना, आजकल जो चल रही हैं, साइंस को ज्यादा ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, तो इन्होंने इसी के अंदर बोला है। क्रिटिसाइज भी हुआ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और लास्ट में आपने इसका कंक्लूजन की बात कर लेनी है, ठीक है। तो एक बुद्धिज्म रह गया था, ठीक है, इसके बाद बुद्धिज्म भी कर लेते हैं हम, इसको आप पढ़ लेना, वैसे इजी है। बुद्धिज्म के अंदर आपको क्या करना है, बुद्धिस्टिक फिलोसफी पढ़ लेना है यहाँ पर, राइट? और इसके ये जरूर पढ़ना है, ये रहा फोर नोबल ट्रूथ, ठीक है, मतलब लाइफ इज ए सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, थर्ड आएगा हाउ वी हैव टू गेट रिड ऑफ, इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग इन लाइफ, एंड द पाथ इज दिस वन, सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब गेट रिड ऑफ सफरिंग, इसका मतलब है, इसको प्रोनाउंस देख लो, इसका मतलब इजी वे में गेट रिड आउट ऑफ सफरिंग। तो कैसे हो सकता है, हमने ये चारों चीजें बताई हैं, और ये एट फोल्ड पाथ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इन चीजों को राइट करना, क्लियर थिंकिंग रखनी है अपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर ए क्लियर इन यूर थिंकिंग, राइट, गलत गलत है, सही सही है, राइट, ये जब रखेंगे, ये सारा एट फोल्ड पाथ के अंदर का है, और वो फोर्थ नोबल ट्रुथ के अंदर बोला है कि हमारी सफरिंग क्या है, सफरिंग के लिए कौन चीज जिम्मेवार है, एंड हाउ टू गेट रिड आउट ऑफ द सफरिंग, ठीक है, ये चार चीजें और ये करनी है आप, ठीक है। तो चलिए अभी हम वापस चलते हैं सिलेबस की तरफ, ऑलमोस्ट आपका सारा ही लर्न हो चुका है, ठीक है, ये आ जाइए, ठीक है। तो ये हमने सारा एजुकेशनल फिलोसफी सिलेबस है हमारा, ठीक है, ये सारा एजुकेशनल फिलोसफी का हमने ये कर लिया, ठीक है जी। और ये नेचर वाली मैंने बात आपको बताई दी थी, ये क्वेश्चंस आपने करना है बुक में से, इंडियन स्कूल ऑफ ए फिलोसफी, वेदांत, सांख्या, बुद्धिज्म, राइट, इस्लामिक को शॉर्ट के लिए पढ़ लेना, ये पांचों हमारे पहले ही हो गए थे, राइट, आज हमने एक आधा डिस्कस किया था, और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ थिंकर्स बता दिया, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये भी हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ एक आधा कुछ जरूरत पड़े, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, and I hope you have understood, this paper. Okay, guys, once again, thanks to all of you. Thanks for this class. Okay, thank you so much.
So I'm going to close the session, right? Okay, guys, thank you. Thank you, sir. Okay, sister, thank you. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. Thank you, sir. okay, ji, right. Thanks to all of you. So late evening, yeah, tomorrow morning, you will get the roll number. Okay. So I'm going to end the sessions, huh?